Very good. All are busy. Can we all align back for the session, please? So today across the country, in many places, different ways of Harvest Festival is being celebrated. So happy Harvest Festival to everyone in whatever way we celebrate. Because South itself, we 5 states celebrate 5 different names, though it's on the same day. So I don't know about the North, how do they celebrate? You're also Shankranti, okay. Telugu people also celebrate, Karnataka also Sankranti. Tamil Nadu people celebrate today as Pongal. Kerala people don't have a celebration today. Their harvest they celebrate only when another day is. Yeah. Anyway, so it's one other day for us to realize the strength of our country. So that's a celebration altogether. If anyone has your bills, anything which is not yet submitted, which has to be submitted, kindly give it to Menaka now. Just give it, she will check the names and align it. Okay. So we are starting our 4th day of this particular training, and we will take first 10 minutes to have reflection because we have crossed 3 days now. So there have been various sessions. So we would like to listen from the reflections of you. What was not okay? What needs more improvement? Yes. Menaka, can you please stand a little far and discuss because sound is Morning. disturbing. The sessions were quite good, quite informative, but the only thing that we wanted was on hands-on, particularly on the softwares and the techniques that we can utilize at all. But unfortunately, this program was not planned for it. So all that is actually when we do development of e-content workshop, it's completely 80% hands-on session. So we thought you should not go just like that. So today we will be doing one hands-on with animation development. But this particular program is not of that. But whenever we have that, we'll ensure that to have. Yeah. Thank you. Yes. Any others? Any others would like to share? This could have been improved better. Accommodation we understand, food we understand, so that is not considered. But that was good, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Good morning. Ma'am, you can take it. मैम मैं मोबाइल नोट्स बनाने के लिए यूज करती हूँ तो क्या मैं यूज कर सकती हूँ बस यही पूछना है मोबाइल आप नोट्स यूज करने के लिए नो प्रॉब्लम यू कैन यूज वही हम एक्चुअली देखा था कुछ पीपल फुल टाइम फेसबुक व्हाट्सएप में सो उनका वजह हम बता दिया ठीक है यू कैन यूज सी मोबाइल इज अगेन अ डिवाइस फॉर अस टू यूज इट फॉर मल्टीपर्पज स्कैन करके you can थैंक यू there is no restriction on that. We know that there are people who are using it for taking notes, but I was warning only people who are full time in WhatsApp. There are 4 people full time in phone, not doing the things. Anytime you see, if we look at them, then they just like बच्चों होता है ना देख रहे टीचर ऐसा मैं ऐसा देखने के बाद immediately ऐसा attention आ it's not you are not attending this training for my sake, right? I can be a controller of everything, but ultimately what you learn is for you. So why will I go and like I don't want only I wanted them like see this is we have enough time to do WhatsApp and Facebook. So that has to be and you are also distracting the other person when you are doing that. So that's why. Yeah. Anyone else would like to share anything that has to be improved? Please change the lighting. Lighting is too bright. Yes. So I'll tell to the engineering team to evaluate. Very irritating. Very irritating way, okay? दीपक ये पॉइंट जरूरी नोट कर दो अभी ग्रुप हमारा लैब का टीम में डाल दो Just take the opinion. That's what I said. Seems good for us. Some people may feel good, some people. That's why I said I'll tell engineering team to evaluate. One point I wanted to say. While teaching, just to go use Google Meet any platform for the teaching, online teaching. If you share your PPT,
most of the people will go like this. What's that? Background is basically black and white marker you are going to use. If you reverse it, whiteboard and a dark blue pen, if you use it, that will more effective to the participant or students. Just ask and take the opinion from the student, which actually that particular display is going to be very much good for them. Ask them. I am just telling my opinion, perception. It may not be truth, it's my perception. I felt that most of the time, if the light is actually available to you, the people will give more attention towards the learning. That is my feel. And also while using phone also, most of the people will put the background as black and the things, but most of the people also put background as white, then they will work. ऐसा है. But according to the majority people, if it go further, it is okay for me. Just take the opinion and go. That is my view. Okay, I'm not going to take any opinion right now because even though I get opinion, none of us are expert in this area. Okay, so we have a team of experts here to whom we will just communicate. This is one observation received because last time people said आपका position of AC is not okay because it's coming on face, right? The thing is, we have our own ways of doing it, but there is a limitation. You can see the ceiling height. Ceiling is not very high in this room. So they, when there is a small point, even one person say we communicate. When the last training happened, they did a evaluation also, like whether really the position of AC is okay or not. But then they said that there are a lot of other factors due to which this particular positioning is decided. So we will always check if, because something ultimately we want learners to be good in this room. One continuous problem which we have been telling is during winter we can't switch on the AC. If we have to switch on the AC to maintain the room temperature. We have to switch on the AC to maintain the machines here, but people cannot manage this. There is no ventilation in this room. You can see there is no windows, no exhaust. We have a big window behind this TV, but because of this treatment, they closed it. So for the sake of beauty, we have closed it, but that ventilation suffocation has. This time, at least, still it's okay. But last year, we had 10 days of Nishta. One person will cough. After 10 minutes, 10 people will cough. After 15 minutes, all the 50 people will cough. Last 10 days, some of you Nishta people are here who attended. We team were with all the time medical kit. So there is an issue. They are looking at it. We have already reported that ventilation issue also. Same way we will say that. We'll surely do it. Yes, sir. टिकट से छोटे छोटे प्रिंट आउट के लिए भागना पड़ रहा है ना, क्योंकि आपने क्या कुछ कारण तो होगा कि यहाँ पर नहीं है, कुछ कारण होगा, क्या कारण है कि आपने प्रिंट आउट यहाँ पर नहीं रखा ताकि हम भी हटा देंगे जाके. What was your last point, sir? कुछ कारण तो होगा कि प्रिंट आउट नहीं मिल रहा है ना. Sir, इधर से we were giving earlier printouts. Officially, it has been not allowed. So we don't give printouts. It's very thing. That's why we write it. Bring all your printouts in your letter itself. मैम जो टिकट हम यहाँ बुक कर रहे हैं उसको तो यही निकालना है. और उससे घूमना पड़ रहा है, मतलब यहाँ क्यों नहीं रखा है, कारण जानना चाह रहा हूँ मैं. इसमें नहीं है, हम कर लेंगे. कारण क्या है कि हम बता देंगे ना, हम क्यों देते हैं ना. सर आप ही देना है ना आपका क्लेम के लिए. नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई अच्छी बात उसके पीछे होगी तो हम भी अप्लाई करेंगे अपने. हम भी हटा देंगे. ये कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा सर. वो ये कहना चाह रहे हैं ना. Sorry, I didn't understand clearly. We can do this and we can. If there is any good thing, then we will apply that. You are saying you will deny giving printout of ticket? No. In the state, मैम आपको अप्लाई की हो वो हम भी अप्लाई करें. अच्छा अगर चीज है तो हम भी accept करें. That's up to you. If you feel something good, please apply. अगर Because कल भी एक क्वेश्चन आया था, इनका कंटीजेंसी होगा क्यों प्रिंट आउट नहीं दे रहे. कंटीजेंसी फॉर अस इज नॉट फॉर प्रिंट आउट. पहले हम देते हैं पूरा इधर ही प्रिंट आउट. Within 2 trainings, my cartridge will be over. So when I put it back, there is an official denial that it is not supposed to be done. But I didn't understand exactly last point what you have said. But if it is that you feel that it's to be continued, he was trying to know the reason beyond it, so that's we can apply it in our state also. so the reason is this, sir. Actually, many times the participants don't take responsibility.
We get the tickets, then any problem comes, they will say, I gave right ticket, you printed wrong ticket, you gave me attached. They don't understand ultimately who pins the thing and submit to us. We have gone through all this. So there are people who has put wrong bills, then money would be like 5 digit है amount में. Print out आने के टाइम से last digit cut हो गया. So audit में क्या होता है? बिल में वो 4 digit नंबर ही लेते हैं ना टिकट का अमाउंट. देन वो बता देंगे आप ही टिकट प्रिंट कर दिया 5 का डिजिट कट कर दिया. दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग प्रॉब्लम. ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम्स ही होता है. एक्चुअली वी आर ऑल कमिंग, पीपल आर कमिंग फॉर ट्रेनिंग. बच्चों नहीं है हमारा साथ. कल से अभी इधर से बच्चों आते हैं. नेक्स्ट 2 वीक्स हमारा पूरा कैंपस 400 बच्चे हैं, पूरा बैंड कंपटीशन के लिए आ रहे हैं. उनका हम चेक कर देंगे, सब प्रिंट हम लेते हैं, चेक करेंगे. टिकट्स भी इधर से एजेंसी बुक करते हैं उनको, वो नहीं बुक करते हैं, वो बच्चों है. हम सब ग्रोन अप अडल्ट्स है. उनका वजह रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ना कुछ आपका वाला आपका लेना चाहिए. मेनी पीपल थिंक दैट हम इधर से आ गया पूरा आपका मर्जी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऐसा नहीं है ना. सो वी आर कमिंग इन अ collaboration work. So we have stopped doing all this because of the problems we have faced. And administratively, we don't have permission to give. वो कुछ people PM ई विद्या का आ गया वो पूछ देंगे. PM ई विद्या वालों टिकट का प्रिंट आउट देते हैं. आपका प्रोजेक्ट दोनों CIT में ही काम कर रहा है, क्यों नहीं दे रहे? PM विद्या प्रोजेक्ट ही अलग है, मेरा प्रोजेक्ट अलग है. एक एक प्रोग्राम अलग अलग प्रोजेक्ट का नीचे है. उनका कुछ. हमारा प्रोजेक्ट में आपका वाटर बॉटल का एक दिन पानी का 20 रुपया अलाउड है. PM विद्या में 600 रुपीज का वाटर बॉटल भी दे सकते हैं. ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट का प्रायोरिटीज है. सो हमें ऐसा कंपेयर नहीं करना चाहिए. एक्चुअली पीपल वोंट अंडरस्टैंड. सेम थिंग विल हैपन टू योर्स आल्सो, राइट? लाइक ओके, लेट्स. मैडम खाने के जो वो है ना, चाहे ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उनकी क्वालिटी आई फर्स्ट इटसेल्फ अग्री. दूसरा मैडम, क्योंकि देखिए आपके जो कॉस्ट है ब्रेकफास्ट की वो 37 रुपीज है, वो 37 रुपीज में वही देगा. सर आपका गवर्नमेंट सिस्टम में है, आप टेंडर अनाउंस करते हैं. अगर आपको मालूम है कि मार्केट रेट में आपको मालूम है कि सर ये मेरा 1 minute sir, that's why I first itself said, because I will know that this will come. We are also struggling with this is not in our control. So मेरा कंट्रोल में क्या है, मैं वो इम्प्रूव कर सकता हूँ. तो आप सजेशन दे सकते हैं कि भाई सजेशन हम सर आप सोचते हैं हम सजेशन नहीं दिया इतना दिन. खाली 200 रुपीज हो रहा है सुबह से शाम तक, तो वो क्वालिटी. सर आपका गवर्नमेंट जेम सिस्टम में भी ये नहीं है. जेम से मैं अभी आपका बॉटल ऑर्डर करते हैं, खराब बॉटल आपका मिनिमम आते हैं, वो ही खरीदना है. ये गवर्नमेंट का सिस्टम है. हम अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं. क्वालिटी अच्छी नहीं है विद द कॉस्ट डजंट हैव अ क्वालिटी सर. यू कैन नॉट से, बिकॉज लास्ट टाइम आई हैव टेकन फ्रॉम जेम, उनका लिखा है. There is hodgepodge. Some person waste, I think that waste the time of the RP also. One has to complete something. After that, in the end of the, there should be discussion method. Otherwise, the concentration खराब हो जाती है. एक बार आदमी पूछ लेता, दूसरा yesterday मेघालय मैडम बात, she is very expert in the RP. फिर भी पूछना है तो लास्ट में पूछिए. तो I request you that उनको बंद करिए कि after that you लिख लीजिए. आपको कोई problems है, you have to write down. Note that in the end of the session. उसके बाद पूछ लीजिए. So thanks for this very important feedback. But in this, I will not control the participant, but I need to tell to the RP how to learn to control the participant. In between, if somebody asks question, that should be a skill set of the RP. Okay, and moreover, I was happy that you said that Binita has taken, this is my first session I have given her. She has also joined NCRT just 1 year back, and we never have this kind of session with producer. We only give sessions to faculty. We never give a session to producer, except audio producer Mr. Ajit Horo. He was a very senior people, so we used to ask him to take session. But अभी पहले बार हम कर रहे हैं. Actually, that is why we felt faculty is not really standing in the production house. मैडम बता रहे थे, I am not right person to ask these questions. अरे मैडम ने क्या करना, वो तो आरपी है. मेरे को irrelevant क्वेश्चन मत पूछिए. I am not right person. बेचारी क्या करी, वो नहीं है, पूछे अथॉरिटी को पूछिए, डायरेक्टर को पूछिए. ऐसा लग रहा है मुझे मैडम. I request you that उनको बोले जो उनके कंट्रोल में जो चीज है, जो बेचारे वो इम्प्रूव होता है सर जरूरी. नेक्स्ट टाइम आई विल टेल. लाइक एक्चुअली दे हैव नेवर टेकन ट्रेनिंग, दे आर ऑल मीडिया पीपल,
right? But they have, I saw them like when we went to Lakshadweep, I saw their presentation. I felt like it's very important to bring the actual people in the field to talk to you. Rather like a faculty ka sab pata hai. We assume that we know everything. And we can prepare anything and take a session. That's a big confidence we all have. So कुछ भी हमारा एरिया नहीं है भी हम आराम से इधर उधर एआई यूज करके ढूंढ के इधर सीखे उधर सीखे प्रिपेयर करके सेशन लेते हैं. समटाइम्स वी आर फोर्स्ड टू इन अवर एससीईआरटी एंड डायरेक्ट. आप सब इधर से कितना पीपल एजुकेशन टेक्नोलॉजी में रियली काम कर रहे हैं एक ग्रुप में आप हाथ काउंट कर सकते हैं. अर्धा पीपल एजुकेशन टेक्नोलॉजी में काम ही नहीं कर रहा है. बट हम पूछने के टाइम आपका इधर डेप्यूटेशन दिया. दो चीजें, एक है इट्स गुड दैट दे आर सेंडिंग यू टू गेट एक्सपोजर. बट हम एक लाइन लिख के दे दिया था कौन आ रहे, वो मास्टर ट्रेनर है. मास्टर ट्रेनर इधर आने के लिए, मास्टर ट्रेनर बनाने के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए उनका पास? बेसिक्स होना. विदाउट बेसिक्स व्हेन दे कम, हम भी आपका सर्टिफिकेट अभी मास्टर ट्रेनर लिखे नहीं देते. हमारा सर्टिफिकेट होता है प्रोस्पेक्टिव मास्टर ट्रेनर. हम ट्रेन किया आप सबको, ठीक है, बट आप मास्टर ट्रेनर बनते हैं नहीं बनते हैं पता नहीं, ठीक है. सो हमारा पहला ट्रेनिंग में हम सर्टिफिकेट में लिख के दे देंगे. अभी आपका भी सर्टिफिकेट में लिख के दे देंगे वी ए सर्टिफाइड एज अ प्रोस्पेक्टिव मास्टर ट्रेनर. सो हम नेक्स्ट लेवल में कुछ ना कुछ काम देते हैं, विलिंगनेस लेते हैं. We just give you, abhi आप 45 people attend कर रहे. If I share a willingness form, hardly 4 people will share willingness to go to the next level. Master trainer का कुछ responsibility है ना, next level में मैं training करना है. इधर से कुछ person का training नहीं आते हैं, अभी कुछ person का education technology. It's not that नहीं आते हैं, it's not your area, it's not my cup of tea. मुझे if you tell me like ना sit and write lot of papers, I am not a person to write papers. Some people like this, they will write. I will write papers only if there is a need. But मुझे training दे दो, मैं आराम से करते हैं. Everyone has your own skill set. But हम ऐसा evaluate करके कभी भी deputation नहीं मिलते. आप ट्रेनिंग कंडक्ट करने के टाइम से भी यही होगा. सो मैं ये सीखा था थोड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से. कैन यू जस्ट गेट द प्रेजेंटेशन? गुड मॉर्निंग. Get the presentation on. So in some international programs which I understood, I got a certificate like this. I went for a international program where we are master trainers and got a certificate as prospective. So when I asked, what do you mean? Why do you give this? Then I understood the complete context. We are also in this scenario. So for the last 2 years in CIT also, we started practicing this. अभी इन 45 में maybe 5% आगे जाने के लिए interested है as a master trainer. You take a challenge and say मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे. मैं नहीं काम किया बट अभी सीखने के लिए शुरू कर दिया. आगे मैं मेरा डायरेक्ट में मेरा ट्रेनिंग करते हैं, 2-3 ट्रेनिंग किया. यूजुअली पीपल टैग अस, सीआईटी का टैग करते हैं ये प्रोग्राम में किया था. हम ऑब्जर्व करते हैं दोबारा व्हेन देयर इज रियली अ नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम हम पिकअप करके कॉल उधर से आपका मास्टर ट्रेनर का सर्टिफिकेट दे सकते हैं. ठीक है. We are moving to today's session. So आज 4 session है. थोड़ा lot of little bit of theoretical based session है, but it's more of value application to all of us. So we are starting today morning session with the reality of understanding what is the cyber safety security concerns that we need to take care. सबको whether you are aware or not, I don't know. There is an order already sent from Ministry of Education to sub-states. This year, a parliament committee has been set up because in our school education, sufficient effort is not put to bring cyber safety concerns into the school curriculum. So, parliament committee has been set up and there is a lot of things that has happened, because of which ministry has written to every state, sub-state में schools curriculum का अंदर cyber safety has to be included. Not, they have not said you should include as a subject. They have not said that आप include करो ऐसा करो ऐसा करो. There is no definition like that. But how is it can be done? पहले वो करने के लिए हमको पता होना चाहिए क्या है वो.
There are many people among us may not be very well versed about it. So we have put today the first session to understand the cyber safety concerns, so that आपका training, teacher training होता है और school में कुछ book create कर रहे हैं, activity create कर रहे हैं, उधर से भी ज़रूरी integrate करना. हमारा CIT training में कुछ भी training है, एक session allotted for cyber safety concerns. Because एक subject का ऊपर हम सब daily interact कर रहे हैं ऐसा problem का साथ. So today we have with us Ms. Chetana. She is one of the resource person of NCRT, and she is helping us to prepare modules, teacher training programs, content, and also she is involved in preparing activities for student in this area. So I welcome Chetana ma'am and over to you. Thank you and a very good morning to all of you. So as ma'am has already mentioned, it's about cyber safety and cyber security. So first thing that I would want you people to read is the code that is there in front of you. So the first question is that do you agree with this quotation? You agree? All of us agree? Is there anyone who doesn't agree? All of us agree. Fine. The real problem of humanity is the following. We have Paleolithic emotions, medieval institutions, and god-like technology. And it is terrifically dangerous and it is now approaching a point of crisis overall. So when we say this and when we talk about the Paleolithic emotions, Paleolithic emotions, so हम क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये कि अगर मैं अपने आप को अपनी माँ से, थोड़ा और पीछे दादी से, नानी से, अपनी परनानी परदादी से, कहीं पे भी आप जाएं, अगर आप एक कंपैरिजन चार्ट बनाएंगे, उस कंपैरिजन चार्ट में क्या सेम रहेगा और क्या डिफरेंट हो जाएगा? बताएं, क्या सेम है आपके बड़ों में और क्या डिफरेंट है आपके बड़ों में? उनके रहन सहन में, उनके व्यवहार में क्या फर्क लगता है आपको? ये तो बहुत बड़ा वर्ड है, जनरेशन गैप. तो हमारे बच्चे भी हमको सुना देते हैं जनरेशन गैप. बट व्हाट स्पेसिफिकली व्हाट? टेक्नोलॉजी. Technology, it has escalated to a very high level. इट इज यस, बहुत हाई लेवल पे एस्केलेट कर गई टेक्नोलॉजी. आई एग्री. और क्या फर्क हुआ? एक्सेसिबिलिटी. फाइन. क्या? Human values. सोच. जी सर. Human values. ह्यूमन वैल्यूज. ओके. उनकी सोच, जो भी वो सोच रहे हैं वो और अभी की सोच दोनों में बहुत फर्क है. Along with the inclusion of Discipline technology, basis Discipline. along with the inclusion of technology, it has also been seen that day by day the emotions of our, human beings, they are being numb in comparison to our ancestors. ओके, ठीक है, गिवन. अब मैं ये पूछती हूँ कि क्या हमारा डिसिप्लिन, जैसा आपने मैम ने कहा डिसिप्लिन है और हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है, क्या इसका डायरेक्ट ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है? श्योर? नहीं है. क्यों है सर? डिसिप्लिन का और टेक्नोलॉजी का कोई रिलेशनशिप? एक्चुअली हम ज्यादा टाइम यहाँ दे रहे हैं. अच्छा. तो वो डिसिप्लिन हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. एक ये एस्पेक्ट है. और क्या हो सकता है? डिसिप्लिन और टेक्नोलॉजी. मतलब हमारे बड़े लोग काफी डिसिप्लिन होते थे विद रिस्पेक्ट टू हाउ दे यूज्ड टू ग्रीट. मतलब कोई घर में आए तो एक व्यवहार, हर एक चीज में बड़ा फर्क था. अब के बच्चों को, अगर आप हमारे वाले बच्चों को देख लीजिए, हम तो फिर भी वो वाली जनरेशन है जो दाल मम्मी से भी डांट खाते हैं, बच्चों से भी डांट खाते हैं. हम तो वो वाली जनरेशन है. तो जी सर. हमारा सर. जी सर. मुझे लग रहा है कि जो ज्यादा इंटरेक्शन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ह्यूमन ना हो के मशीन हो जाए. तो दैट्स वाई जो हमारे मॉरल वैल्यूज थे या ग्रीट करना था वो हम थोड़ा भूल रहे हैं, क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर को तो रोज गुड मॉर्निंग बोलने से रहे, एलेक्सा को छोड़ के. ठीक है. तो मुझे ये लग रहा है कि जब से टेक्नोलॉजी ज्यादा क्लोज आई है, ह्यूमन से हम थोड़ा दूर हुए हैं जो इंटरेक्शन. सो दैट्स वाई द रीजन इज मॉरल वैल्यूज थोड़ी कम हो रही है. एग्रीड. एंड सर. टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, उस समय की टेक्नोलॉजी उस टाइम कॉन्स्टेंट थी, लेकिन एक जो हमारा मोरल वैल्यू या वैल्यू उस टाइम का दूसरा था.
आज का दूसरा ये सबसे बड़ा डिफरेंस सारे लोगों के पास जो है जो एक था कि इनको हमारे बच्चों को टाइम देना है, चीजें करना है, वो सब चीजें सेल्फ सेंटर्ड हो गई है। पहले वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं थी। ये बेसिक डिफरेंस टेक्नोलॉजी तो उस समय में थी, उस समय के हिसाब से। एग्रीड। हाँ सर, आप उस समय कुछ कह रहे थे। कुछ तो पॉइंट आ गए हैं जी। मैम, ये है कि पहले के टाइम में बच्चे जो थे अटैच होते थे अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से, उनसे वो वैल्यूज सीखते थे और किस तरह वो लोग करते थे वो देखते थे। अभी क्या है कि ना पेरेंट्स के पास टाइम है बच्चों को देने के लिए, ना ग्रैंड पेरेंट्स के पास, और ना ही बच्चे के पास टाइम है कि उनके पास बैठे या बात करें। मतलब आप लोग सब मान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ज्यादा आगे आ गई हमारे एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, इमोशंस, इंटरेक्शन। एक मिनट सर। जी सर। बेसिकली टुडे जनरेशन मोस्टली लिविंग इन अ वर्चुअल, यस, ज्यादातर वर्चुअल वर्ल्ड में रह रही है। और पहले की जनरेशन जो थी दे वर फिजिकली एंड इमोशनली कनेक्टेड टू चाहे किड्स हैं या बच्चे हैं या अपने रिलेटिव्स। आजकल के बच्चे मोस्टली वर्चुअल वर्ल्ड में टाइम बिताते हैं, जिसकी वजह से उनका कनेक्टेड जो अपने पेरेंट्स के साथ हो गया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप सिर्फ बच्चों को ही ब्लेम करेंगे क्या? हम वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं रहते एज पेरेंट्स? क्या हम, हाँ, मतलब मैं आपसे एक बात कहती हूँ, सॉरी मैं 2 मिनट में आपसे बात करती हूँ सर। कल मैं अपनी बेटी के साथ वर्ल्ड बुक फेयर गई बच्चों को लेकर, तो किसी बात पे मैंने कुछ उससे कहा कि हम ना ऐसे कुछ कुछ करते थे या ऐसा। कहती मम्मा आप लोगों के पास कुछ ज्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं है शेयर करने के लिए? बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है आपके लिए शेयर करने के लिए। तो अब उसका जवाब जो इंस्टेंटली मन में आया वो ये आया कि बेटा मेरे टाइम में टीवी के नाम पे दूरदर्शन था। अब दूरदर्शन के अंदर भी न्यूज भी आएगा, कृषि दर्शन भी आएगा, सब आएगा, कुछ इक्का दुक्का हमारा काम, बाकी सब पापा का काम। अब जो पापा देख रहे हैं वो हमको भी देखना है। तो पॉइंट है हमारे पास और कोई चीजों करने के लिए ना बहुत समय था, बहुत ही समय। और अगर तुम मुझसे पीछे चली जाओगी दादा दादी के पास, तो उनके पास तो और भी ज्यादा समय था, वो तो और भी 10 चीजें तुमको नहीं बताएंगे जो हम नहीं करते थे। तो पॉइंट इज कि हमारे पास इस समय एंगेजमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत बिजी हैं, बहुत कुछ है हमारे पास। अभी कितनी बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि जब बच्चा देखेगा फोन पे बात कुछ कर रहा है, आप बोलोगे क्यों, बंद करो, तो तुरंत बोल देंगे आप भी तो यूज करते हो। अब आप बोलोगे भाई मैं पूरे दिन थक कर आया या मैं थक कर आई, 5-10 मिनट के लिए तो यूज करो, मेरे को भी तो बेटा स्पेस चाहिए। तो क्या वो बच्चा वो इक्विप्ड है समझने के लिए कि आप कितने थके हैं और आपको कितनी स्पेस चाहिए, या आप 24 घंटे में से 12 घंटे काम करते हैं और अगर 1-2 घंटे यूज कर लें तो इट्स ओके? नो, उसके लिए तो है कि भाई ये कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, राइट? तो पॉइंट है, सॉरी अब आप कुछ कह रहे थे सर, आप बात करें। मैं ये कहता कि एक आज के डेट में ये भी इसका एक कारण है कि हम लोग राइट्स में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम बात कर रहे हैं। और हर कोई डरता है कि किसी के बच्चे को टोक दिया या स्कूल में हो या घर में हो, तो जब उसको कहीं से कुछ रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो वो फिर खुले एकदम चल रहा है हर चीज में। तो वो भी एक बड़ा कारण है। जब आज पहले तो हर जगह बच्चा डांट खाता था तो वो थोड़ा सा सही रहता था, डिसिप्लिन रहता था। मैं ये बात मानती हूँ क्योंकि ना जी सर, इसको अगर ऐसे देखा हम ना, हम जो चेंजेस हैं, जो बदलाव होते हैं ना, उसको एक दूसरा एंगल से देखना चाहिए। आज हम कहें हमारे बच्चे का वैल्यूज कम हो गए, टेक्नोलॉजी आगे बहुत चेंज हो गई। सेम बात है हमारे पेरेंट्स हमसे कहते थे, सेम बात उनके पेरेंट्स हमसे कहते थे, है ना। कोई इंसान हमेशा अपने सीखता था, चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। हमें चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छे लोग बुरे लोग हर दौर में रहेंगे। टेक्नो फ्रेंडली होने का मतलब वैल्यू गिरना नहीं हो सकता है। वैल्यू एंड वैल्यू लोग पहले भी रहे होंगे, ये हमेशा रहेंगे, अच्छे लोग बुरे लोग। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, पर एक बात मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ। जैसे सर ने अभी मेंशन किया और जो मैंने भी महसूस किया, आजकल के बच्चों को हारना या गिरना या तकलीफ में रहना नहीं पसंद है सर। आप ये बात तो मानेंगे ना? मतलब ये जनरेशन, हम भी तो थे, पर हमारे में रेजिलियंस जो एक वर्ड होता है ना, रेजिलियंस थोड़ा ज्यादा। सर ने कहा ना, क्योंकि मम्मा कुछ नहीं समझ में आया तो वहां से एक बेलन उड़ के आ रहा है, वहां से एक चप्पल उड़ के आ रही है, वहां से पापा डांट लेंगे। मतलब हमें याद है कि मम्मा कहती थी कि तुम लोग कर रहे हो ना बहुत बदमाशी, आना तो पापा को रात में बताएंगे। तो हमें याद है कि वो बेल बजती थी और हम दरवाजे के ऊपर भाई बहन चिपके, मम्मा बताना मत प्लीज, मम्मा बताना मत, मम्मा प्लीज। मतलब एक डर भी था, सब चीजें थी, क्योंकि वो डांट खाना, वो समझना, मतलब एक हम लोग थोड़े से ना पक्के टाइप के थे, जैसे ना वो पत्थर, चिकना पत्थर, वो जो पानी से ऐसे गुजर गुजर के फाइनली इतना सॉफ्ट हो जाता था, मतलब चिकना हो जाता है। आई गेस हमारे वाले बच्चे जो है ना, वो स्ट्रेंथ शायद जो है वो बहुत सारी जनरेशंस के हिसाब से अगर हम मैच करें कम है। इनफैक्ट वहाँ जो, बिकॉज वी नो दैट देयर हैव बीन मेनी केसेस, हम नॉट सॉरी सुसाइड केसेस आप सुनते हो, या बहुत दूसरी तरह के बिहेवियरल इश्यूज जो बच्चों के साथ हम फेस करते हैं। आप भी स्टूडेंट थे, हम भी स्टूडेंट थे, हमारे पेरेंट्स और हमारे में शायद इस बात का फर्क नहीं था कि हाउ वी यूज्ड टू रिएक्ट टू आवर टीचर्स, वो फर्क नहीं था।
मतलब मुझे याद है कि मेरी मम्मा ने तो मुझे हमेशा ये कहा, कह देंगे ना मम्मा मैम ने ऐसा, तुमने कुछ किया होगा, क्या किया तुमने क्लास में? अभी हम जाके बोलेंगे मम्मा हमने कुछ नहीं किया, आप पता नहीं मैम ऐसी डांटती हैं। वो जाके वहाँ बैठेंगे, मेरे आप बोलेंगे कि अरे नहीं वो तो ऐसा, ऐसी इतनी अच्छी बच्ची है, कहाँ ऐसा काम करेगी। वो वहाँ मैडम बोलना शुरू करेंगे, वो 4 बातें और लगा देंगी साथ 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 साथ। तो मैं खड़े होकर सोचते थे कभी हम लोग, अरे भाई इतने भी बुरे नहीं है जितनी आप शिकायतें लगा रहे हो। पर यहाँ पे आज की डेट में आप शिकायत लगा नहीं सकते, और कई बार तो पेरेंट्स शिकायत सुनना चाहता भी नहीं। मूल रीजन है कि पेरेंटिंग का अभाव हो गया है, और पहले स्कूल में भी जीएसटी लगा हुआ था, अभी के स्कूल में जीएसटी बंद है, तो स्कूल में जीएसटी लगाना होगा। जीएसटी का मतलब मेरा कहने का था गार्जियन, टीचर और स्टूडेंट का जो होता था पहले जी। अभी तो बच्चे के पेरेंट्स बाहर है, उसके कोई गार्जियन नहीं है, तो सबसे पहले विद्यालय में जीएसटी लगाना होगा कि हर मंथ एक बार जीएसटी लगे, गार्जियन आए हर बच्चे का, टीचर भी रहे और स्टूडेंट भी रहे। और हम इन सब चीजों के साथ टेक्नोलॉजी को भी अभी लगा, जोड़ अभी विद्यालय में पीटीएम लगा दिए, तो पेरेंट्स आते नहीं है, पेरेंट्स किसी के कहीं काम कर रहे हैं, कोई गरीब के बच्चे तो ठेला चलाने गए हैं, माँ आ नहीं सकती है, तो पीटीएम को हटा के जीएसटी लाना चाहिए। कोई ना कोई गार्जियन आए, पूरे मोहल्ले के एक आदमी आए एक मोहल्ले से, वो सारे बच्चे को कहना ये हमारा बच्चा है, पहले जैसे होता था। वो एक आदर्श समाज था। ये एक आदर्श समाज होगा अगर ऐसा हुआ कि हर मोहल्ले का हर बच्चा, हर फैमिली का बच्चा हो, तो वाह। इतनी सारी चीजें चेंजेस हो गई है ना, बिलीफ नहीं है लोगों को, तो नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आई एम जस्ट कमिंग बैक टू दैट। मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने जो समा बांधा वो ये बांध दिया कि अरे भाई बड़ी बुरी बात है टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। थोड़ा सा मैं डिसएग्री कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने में और अपनी डॉटर में कंपेयर करती हूँ, तो मुझे लगता है मेरे से ज्यादा रिजिलियंट वो है। मतलब मैं कई बार चीजों को लेकर के बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन वो नहीं होती। बच्चे आजकल के प्रैक्टिकल हो गए हैं, उन्हें ये पता है कि इससे उबरना कैसे। एब्सोल्युटली, इस पॉइंट पूरे डिस्कशन का मतलब ही यही है कि वी हैव डाइवर्स एक्सपीरियंसेस। हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस नेगेटिव हो, किसी का एक्सपीरियंस पॉजिटिव हो। द पॉइंट इज एक्सपीरियंस कभी भी गलत नहीं होता। किसी चीज के बारे में हम जब बचपन में लिखते थे ना, साइंस का एक ऐसे, वो जरूर याद करते थे हम लोग कि भाई विज्ञान अभिशाप या वरदान। भूल, और हम लोग हमेशा याद करते थे कि भाई ये तो पेपर में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, नहीं तो जो भी आएगा उसमें से 4 पैराग्राफ में शब्द लगा के कर देंगे काम। तो पॉइंट इज कि कोई भी चीज कैसे एक्सपीरियंस करता है कोई व्यक्ति, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि वो अभिशाप है या वो वरदान है। एक्चुअली इस पूरी जो कोटेशन से शुरुआत करने का मतलब था वो ये था, जो मैं आपसे कहना चाह रही थी। हम जब बोलते हैं पैलियोलिथिक इमोशंस, पैलियोलिथिक इमोशंस यानी कितना भी इंसान तरक्की कर गया, पर आज भी इमोशंस वही हैं। आज भी डर, ग्रीड, ये सब चीजें हमें कभी कभी गलत काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इमोशंस तो वही हैं। इंस्टीट्यूशंस मिडिवल लेवल पर आ गई कि थोड़ी सी बेहतर हो गई, वो एक नया तरह से एक्सेप्टेंस में आ गई, अपना आपको प्रोग्रेस कर गई। बट टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी स्पीड में भाग रही है, इतनी स्पीड में भाग रही है कि हम कहीं अभी भी पीछे रह जाते हैं। जब तक इंस्टीट्यूशन एक लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को पहुंचता है कवर करने के लिए, तब तक टेक्नोलॉजी और 2-3 लीप्स आगे चली जाती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम ये ना भूलें कि हम अगर किसी भी चीज से इंटरैक्ट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेस जो होता है वो हमारा अपना एक्सप्रेशन, अपना इमोशन, अपना परसेप्शन, ये सब चीजें होती है। और इसलिए किसी भी चीज का सही और गलत होना इज टोटली पर्सन डिपेंडेंट, नॉट community dependent, it's person dependent. So let's start with this question: is there any similarity between physical and digital space? आपके हिसाब से जो डिजिटल स्पेस है और फिजिकल स्पेस है, क्या उसमें कुछ समानताएं हैं, आपको लगता है, या बिल्कुल अलग है, कोई उसमें सेम चीज नहीं है? I think it's totally different kind of thing. Like if I am here physically present, I can not talk to you, comment to you in a way I will do at a online level. जैसे मान लीजिए XYZ कोई भी यहाँ पे और वो Facebook पर है, I can be anonymous and I can say anything I want to do. But here in this physical space, I cannot do that. So I think that there are certain similarities,
but absolutely we cannot say that they are They're contemporary exactly to each other. similar. Difference of हाँ, अगर यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है लेसन में तो अभी आप मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहेंगे कि अरे यार बुरा मान जाएगी, अरे एनसीईआरटी में सर्टिफिकेट भी लेना है, अरे कैसे बोलेंगे, पर हाँ फेसबुक पे जाके लिखेंगे XYZ, अरे इतनी खराब सेशन, 1 घंटा हम सोए बस, समझो क्या एक सेशन रहा होगा. Yeah, true, very true. The way we express becomes exactly extremely different जब हम लोग ऑनलाइन जाते हैं. बट क्या ये सबके साथ ऐसा होगा? नहीं. अगेन what it comes down to is integrity. आपकी खुद की जो एक पर्सनालिटी है. कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ भी हो जाए, कभी भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, एक जैसे ही दिखते हैं, इनसाइड एंड आउट हमेशा, राइट. सो अगेन दैट रिलेट्स टू दोस पैलियोलिथिक इमोशंस. नाउ सिमिलैरिटी में क्या हम ये कह सकते हैं कि द वे वी हैव स्टार्टेड यूजिंग डिजिटल स्पेस फॉर बेबी बैंकिंग, फॉर शॉपिंग, राइट. और अब हम, मुझे नहीं लगता, वैसे मुझे याद है एक बार मैं यहाँ एनसीईआरटी आना चाह रही थी और मैं बिना वॉलेट के घर से निकल गई थी. तो बिना वॉलेट के घर से निकली थी और ये जो कैब मैंने ली थी, कैब ब्रेकडाउन उसका हो गया आईएनए पे. अब जब आईएनए पे वो ब्रेकडाउन हो गया तो मैं निकल ली और दौड़ी कि भाई चलो अब स्टेशन मेट्रो दिख रहा है, मेट्रो में घुसते हैं तो लेट हो जाएंगे सेशन के लिए. और जब हम पहुंचे तो हमने देखा जी हमारा वॉलेट ही नहीं है. फिर ध्यान आया अरे फोन तो है, तो हमने क्यूआर से लिया, अपना टिकट, आ गए, यहाँ पहुंच गए. ऐसे ही हम अपने वापस घर पहुंच गए, मतलब विदाउट अ वॉलेट आई वाज रोमिंग अराउंड. पहले जो चीज मेरे लिए वॉलेट करता था वो मेरा काम फोन भी कर देता है. इसके अलावा पढ़ाई, एजुकेशन, पहले थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी विद रिस्पेक्ट टू किस तरह हम पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन से स्कूल में हम जाते हैं. अभी आप देखते होंगे MIT के सेशंस हैं, कोर्सेज हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं. एनसीईआरटी ने स्वयं पोर्टल बनाया है, वहाँ पे सब कुछ कितने सारे सेशंस हैं. IIT ने IIT पैल बनाया है 11th क्लास के बच्चों के लिए, जहाँ पे IIT प्रोफेसर्स के सेशंस हैं. तो कुछ हद तक ऑफ कोर्स सिमिलैरिटी भी है, जैसे सर ने कहा, बहुत सही बात है कि डिफरेंस भी है. और सबसे बड़ी बात जैसे सर ने कहा, जो बात उन्होंने कही उसको मैं एक्सटेंड करते हुए बोलती हूँ. जो एक रियल वर्ल्ड में आप होते हैं तो आप एक स्ट्रिक्ट अध्ययन होता है कि आप जहाँ बैठे हैं, किस तरह के लोगों के साथ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं. जैसे मम्मी पापा के साथ बैठे हैं तो कैसे, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं तो कैसे, चीजें आपकी वेरी होती है. बट ये चीज ऑनलाइन में नहीं होती, वो फिल्टर हट जाता है. आप है फिर वहां पर सब कुछ करने के लिए, राइट. देख नहीं रहे हैं. कोई देख नहीं रहा है. राइट. सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेफ्टी. इज सेफ्टी इन द डिजिटल स्पेस. पहली बात तो जब हम बात कर रहे हैं ये टर्म जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी, इसमें क्या फर्क है? हम कह रहे हैं सेफ्टी, हम कह रहे हैं सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी, फर्क क्या है इसके अंदर? क्या होती है सेफ्टी और क्या दोनों सेम टर्म्स है या कुछ है फर्क? फर्क है, क्या फर्क है सर? Security is an actually process or actually putting something to make safe of a particular device or animal or so and so. Through security, you can make a particular thing safe. So you say कि safety is a first step towards security. पहला step safety. Without security also we become safe. Without security also we can be safe. Okay. But Yes. for sometimes security is required to become safe. Safe is a terminology. If you want to maintain the particular same thing, your objective is, if the same thing is happened, right, that is called as safe. If that is not happened, it's called as unsafe. For example, this bottle is the right. If I wanted to put in the same mode up to whatever the time I decide, nothing has happened to this one, this is called safe. For 10 minutes I thought that it should be of this state. If it not become like that, after 5 minutes it become fall down and it damaged, it is not in safe. Without making security also, this may become safe, and with security also we may take it's safe. That's the difference between security is and actually something we have to put that in the same mode. Thank you so much. मुझे एक बहुत नया आइडिया मिला सर की तरह एक्सप्लेन करने का. वेरी गुड, थैंक यू सर. वी कैन स्टे सेफ. One example. बिना सिक्योर क्या? After completion, we will go to our natives. Like I am coming from Azmir, so I will go by trains. I will reach Azmir. So after that, the coordinator will mention happy journey and safely you have to reach. Like
The word safety they will mention in the WhatsApp group. She will not mention take these kind of security and militaries and so they will not mention. That is the thing, to maintain that particular what are the objective you have, what are precautions, what are the things you are going to take is actually given by the word security. The things you want to put in the same thing is called as safety. Very nice. Can we just have a huge round of applause for him? Thank you so much. Huge round मतलब huge round ना, सर्दी बहुत है, थोड़ी तेज मारेंगे ना गर्मी हो जाएगी, बड़ी हवा आएगी। मजा आ गया सर, 2-3 बार और क्लैप। सब जान जाएंगे। जी। Security is a mean by which safety can be achieved. Safety is Security is a mean by which safety can be achieved. Fine. अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, गोवा जाते हैं या फिर हम एरोप्लेन में जाते हैं या हम वो जो झूला होता है ना कोलंबस, है ना, ये 3 जगह पर, मैं 3 जहाँ पे भी जिसको जो याद है कि भाई हाँ ये वाला, कोलंबस में क्या पहनाते हैं वो हमें बेल्ट। गोवा में जाते हैं तो वो एक बनाना राइड होती है जहाँ पे वो बिठा के उल्टा कर देते हैं बोट को, तो उसमें वो क्या पहनाते हैं हमें, जैकेट। ठीक है, और क्या बोला था मैंने थर्ड एग्जाम्पल, एरोप्लेन में हमें क्या बोलते हैं अगेन, सीट बेल्ट। तो ये सारे तीनों चीजों के साथ जो टर्म यूज होता है वो सेफ्टी होता है या सिक्योरिटी होता है? सिक्योरिटी, सेफ्टी होता है। अब आप घर पे जब मतलब आपके घर में आप जहाँ भी रहते हैं, इंस्टीट्यूट मतलब सोसाइटी है या ग्रुप ऑफ हाउसेज है, तो आप लोग तय करके किसी को बैठाते हैं गार्ड को कि भाई इसको यहाँ पे लगाएंगे, रात में ये चौकीदारी करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी या सिक्योरिटी? वो वही बात है जो सर कह रहे हैं, राइट? सेफ्टी इज विद रिस्पेक्ट टू यू। आप जो भी स्टेप्स और एक्शंस आप जो लेते हैं टू इंश्योर कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, दैट इज सेफ्टी। पर उसके लिए जो मैकेनिज्म आप एप्लॉय करते हैं भाई कि ठीक है मैंने ले लिया, पर इसके अलावा अगर फिर भी ब्रीच हो गया तो मैं एक लेवल और रखूं जो बाहरी तरीके से मुझे बचाए, उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी। Like two-way authentication. Yes, That is a security measure, absolutely right. And a strong password is a safety measure, right? Absolutely fine. तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी में। सिमिलर जब हम वर्ड करते हैं साइबर सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी, तो ऑफ कोर्स साइबर सेफ्टी का मतलब ये हो गया आप क्या एक्शंस ले रहे हो, आप कैसे इंश्योर कर रहे हो कि आपके ऊपर कोई हार्म ना आए। और सिक्योरिटी हो जाएगा साइबर सिक्योरिटी जब आप कुछ ऐसे टूल्स एम्प्लॉय करोगे जिससे ये इंश्योर करो कि भैया कहीं अगर 1% हमसे चूक हो भी जाए तो कुछ एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी हमें बचा सके। क्लियर? ये वाले पॉइंट क्लियर है मैम? सो ये हमारा आज का एजेंडा है। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं डिजिटल स्पेस। जब हम डिजिटल स्पेस की बात करते हैं या हम वर्चुअल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो उस डिजिटल स्पेस, वो भी हमारी स्पेस है, रियल वर्ल्ड में भी हमारे पास सबके पास अपनी अपनी स्पेस है। आपका अपना एक घर है, उस घर में बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही जहाँ आप ऑफिस में जाते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, अगेन वहां पे भी आपसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से डिजिटल स्पेस में भी आपका अपना एक स्पेस है। अभी आप अपना फोन खोलेंगे, उस फोन के अंदर से मेल आपकी तुरंत पॉपअप हो जाती है, हमेशा लॉक्ड इन है, राइट? आप कोई भी और ऐप खोलते हैं वो उस ईमेल के साथ जुड़ के वो सारी एप्स खुल जाती हैं। अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप अमेजोन में हैं, आप लॉक्ड इन हैं, वो आपकी स्पेस में वो तुरंत खुल जाता है। आपने क्या खरीदा, आपने क्या लास्ट टाइम चूज किया था, या आपने यूट्यूब पे कौन सा वीडियो देखा था, सब चीजें, ये पूरा पार्ट आपका डिजिटल स्पेस है। क्या मतलब है इस बात को करने का यहाँ पर, या क्यों मैं इसको हाईलाइट करना चाह रही हूँ? उसका कारण ये है, जितना ध्यान आप उन चीजों का रखते हैं जो अपने घर में कि भाई हाँ ये हर चीज मेरी जो है इसको जगह पर रखना है, मेरे काम का नहीं है, जगह पर रखना है, या इसको मुझे सही जगह पे रखना है, बंद करके रखना है, लॉक करके रखना है, बहुत सी चीजों का ध्यान रखते हो ना। पासपोर्ट्स हैं, आधार कार्ड है, आप फोटोस्टैट के लिए लेकर जाते हो तो भी आप थोड़ा सोचते हो कि भाई ये गलत तरीके से मिसयूज मतलब कोई ना कर ले, तो मैं किस तरीके से इसको मेल में नहीं भेजूंगा, या व्हाट्सएप पर डिलीट करा दूंगा, या उसको मैं मास्क करके यूज करूंगा। ध्यान रखते हैं आप इतना कि भाई ये कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। उसी तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड में आपको यह ध्यान रखना है हर एक चीज जो आपकी डिजिटल स्पेस में है, आपका फोन आपको तुरंत बताएगा आपकी डिजिटल स्पेस में क्या क्या है। आपको उस हर एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई इसको
कॉम्प्रोमाइज ना कर सके। सो क्या क्या एलिमेंट्स है डिजिटल स्पेस में? जब हम डिजिटल स्पेस की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें जरूरत है हार्डवेयर की, है ना? हार्डवेयर क्या हुआ? आपके डिवाइसेस। हाँ, जैसे आपका फोन है, वो आपका एक हार्डवेयर है, राइट? आपका कंप्यूटर हो गया, ये हो गया आपका हार्डवेयर। आपके साथ रिलेटेड आपके यूएसबीज हो गए, जो आप पेन ड्राइव यूज करते हो, वो हो गया। प्रिंटर, बहुत जितनी भी चीजें आपके आसपास है, वो सब आपका हार्डवेयर है। हर लेवल पे जब आप ये सोचने लग जाते हो ना कि मेरा कहाँ से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और फिर आप उसको ठीक रखने लग जाते हो, उसे हम कहते हैं सेफ्टी, राइट? अगर हम हार्डवेयर की बात करें और हार्डवेयर में आपके फोन की बात करें, कैसे आप सेफ्टी इंश्योर करते हो? यस, आप अपने फोन को क्या रखते हो? लॉक, पासवर्ड लॉक रखते हो, आप बायोमेट्रिक्स लगाते हो कि कोई हमारी फोन को मिसयूज ना कर सके, मैं अगर छोड़ दूं तो हम उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। नेक्स्ट हम आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर क्या हुआ? एप्लीकेशन और वेबसाइट्स जो भी आप एक्सेस करते हो, आपके अपने फोन में बहुत सारे ऐप्स हैं, राइट? वो सारी ऐप्स जो हैं, उनको आप कैसे सेव करते हो? उसमें भी पासवर्ड है और लॉगिन लॉगिन रहते हैं। जब खुद यूज करें तो लॉगिन, अदरवाइज लॉग आउट हो गया। लॉग आउट करिए। और It could be biometric pin pattern. There are so many things that we can. एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एज वेल, कि भाई कोई एक्सेस हो तो हमें पता चल जाए किसी ने आपका मेल अकाउंट खोला, किसी ने आपकी तरफ से शॉपिंग करने की कोशिश करी, या क्योंकि वो मार्केट प्लेस है तो हमारा ही पैसा जा रहा है, इसके लिए भी हमने वहां 2FA किया हुआ है। मतलब वो आपका सॉफ्टवेयर हो गया, राइट? कि आप सॉफ्टवेयर को कैसे अपने प्रोटेक्ट, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं उसमें ऑन कर देते हैं। यस, सिमिलरली जी। Ma'am, there is something I want to include here for each and everyone. Maybe यहाँ पर हमारे respected professors and teachers. बहुत पहले की बात है ये. There was an inclusion of S after HTTP. That is for security, safety, and still there are many hackers who are using the technique of phishing or key logging or so many things. And बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं मेरे घर के पास में ही देयर इज एन स्टेशन हाउस ऑफिसर, 56 लाख रुपए का जस्ट बिकॉज ऑफ एस, just because of small s. He was sent a link for bank, and that link didn't have any s after HTTP. He opened that link thinking that it is an official link from the bank, and immediately within 2 or 3 minutes 56 lakh rupees was wiped from his account. So for each and every one of us here, एक बार आप इस चीज को भी समझ लेना, for security and safety, inclusion of S after HTTP, it's mandatory, it's important for all of you. Yes, and when normally what happened last, अभी मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, अभी just 5 days back, so we went to Agra and while we were coming back my husband told me कि चालान आया है, तो 2,000 रुपए का चालान लग गया, स्पीडिंग पर हो गया। तो मैंने कहा अच्छा, ओके चलो। अब आपके दिमाग में अगर देखो, this is how your brain plays with you, right? पहले थे इमोशंस, दिमाग कनेक्ट कर रहे हैं, बात हो गई, खत्म हो गई बात हम दोनों की, पे कर दिया उन्होंने चालान, बात फाइंड अप। बस 5 दिन पहले मेरे पास मैसेज आता है, RT समथिंग करके, RTO चलान्स, और इतना बड़ा कि आपका चालान कट गया, ये PDF, नीचे कुछ एक डॉक्यूमेंट। अब मेरे दिमाग में आया, मैं कहाँ गई थी चालान कटवा मेरा? तो वहां हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, घर आते वक्त तो कभी नहीं, मैंने अभी कोई ओवर स्पीडिंग का मुझे नहीं लग रहा। मैं सोच रही हूँ, दौड़ रहा, दिमाग बहुत तेज दौड़ा है उतने सेकंड्स में, क्योंकि वो डाउनलोड का आपका ऑप्शन आया हुआ है ना। हमें आज टीचर्स इतनी आदत होती है डाउनलोड दबाने की, क्योंकि PDF दिखती है ना, हमें दिमाग में घूम रहा होता है कि ये PDF है, इसको डाउनलोड करना है। मैं लग रहा है चलान आया है PDF फॉर्मेट में, दबा दिया। जब दब गया तो देखा वो APK फाइल थी, हुआ ना। अब जैसे ही वो डाउनलोड हो गया, बस दिमाग चल गया कि वहां उस समय APK दिख गई। अगर आपको APK नहीं दिखती है, आप जाके उसको खोल भी लेते हो, राइट? वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है, बस उसके बाद आप अपने फोन में जो जो करते रहो वो जाता रहेगा, आपका वो मालवेयर हो जाता है इंस्टॉल, और आपके पासवर्ड वगैरह सब जाना शुरू हो जाते हैं। तो APK फाइल्स जो होती हैं स्पेसिफिकली, उनको हम कभी भी बाहर से डाउनलोड नहीं करते। आपके फोन में ऐप स्टोर होता है इन दी आईफोन, प्ले स्टोर होता है इन एंड्रॉइड, कोई भी फाइल हमेशा वहीं से डाउनलोड करते हैं, बिकॉज वो उनकी जिम्मेदारी है कि वहां पर रखी हुई हर ऐप सिक्योर हो। अगर नहीं होगी, आप केस कर सकते हैं, आप दावा कर सकते हैं कि भाई हमने तुम्हारी जगह से डाउनलोड किया, हमारे साथ चोरी हो गई, हम कोर्ट में जाकर आपको चैलेंज कर सकते हैं।
पर कहीं बाहर से आप डाउनलोड करते हो, इट्स गॉन। सिमिलरली जब हम पेमेंट्स करते हैं, कोशिश करें हमेशा बैंक के साइट से या फोन पे पेटीएम जब आप करते हो तो उनका वो एक ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह आता है, उससे आप कर सकते हो ना डिस्कस। अब कोई आपको लिंक भेज रहा है, उस लिंक से आप पेमेंट कर रहे हो, उसमें आपका बैंक आपकी मदद बहुत कम कर सकता है। करेगा, कर सकेगा, ऐसी बात नहीं करता है, बट बहुत कम। So again, this is one of the safety measures that we take at software level, right? Then networks में क्या वाईफाई यूज करते हैं हम लोग, राइट? सो वाईफाई का क्या होना चाहिए हमेशा, पासवर्ड घर का सेट। अब वो भैया आता है, मैडम वाईफाई लगा दिया, पासवर्ड डाल दिया मैडम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है भैया, चलो ओके भैया। अब हम 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के साथ जिंदाबाद है। अब किसी दिन किसी को ध्यान में आया, यार ये वाला जो है इसको ट्राई मारे जरा, क्या पता है इसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो। उसने मारा, उसकी खुल गई, हमारा तो सारा सामान, उनके लिए जो डेटा जा रहा है, जो डेटा आ रहा है, सब टैप हो सकता है। पहले जमाने में फोन टैपिंग आपको समझ में आता था? हम लोग फोन कभी उठाते थे, किसी की क्रॉस कनेक्शन भी हो जाता था, हम हेलो बोलते थे, कोई और भी हेलो बोलता था साथ साथ, राइट? तो क्या होता है अभी, अब वो वाईफाई में होता है, क्रॉस कनेक्शन, तुम्हारा सामान वहां भी सुनाई दे रहा है, हमें भी सुनाई दे रहा है, राइट? सो नेटवर्क लेवल पे अपने आप को सिक्योर रखने का मतलब है आप अपने वाईफाई सबको, और कहीं बाहर निकले भाई बहुत जरूरी काम है, वाईफाई एक्सेस करना है मुझे। अब पब्लिक वाईफाई है, आपने उसे खोला, उसमें अमेज़न की पेमेंट कर रहे हैं, लीजिए। पब्लिक वाईफाई में सब ऐसे बैठे होते हैं ताक पे देखते हुए कि अरे आए आए, चलो आए, पकड़े। सो स्मॉल थिंग्स दैट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ। नेक्स्ट इज डेटा। आपका डेटा, क्या डेटा है आपका ऑनलाइन में? जैसे डिजी लॉकर में तो सब सर्टिफिकेट्स भी हैं, और बैंक अकाउंट है, हाँ जी बिल्कुल, बैंक अकाउंट हो गया आपका, शॉपिंग का सारा डिटेल्स हो गया। अब आजकल हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी, हमारी पूरी आइडेंटिटी उसके ऊपर है, सोशल मीडिया, कहीं भी शॉपिंग करने फोटोज, वीडियोस, तो सारे सब डिटेल्स दे रहे हैं। ऑफर के चक्कर में जितने क्वेश्चन पूछो वो पूरे का सवाल गलत था सर, कैसे क्या नहीं है बोले आप क्या सोच रहे हो वो भी है, सोच रहे, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। If someone can compromise the data of others, I mean, सारा I'm कुछ not an ये expert, but whole country will collapse. Sure. Sure. So I think that physically we are here, and along with that, digitally भी हम exist कर रहे हैं. और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, उसको बोलते हैं शेयरिंग। जब आपके पास समय हो तो अपने YouTube पे लिखिएगा शेयरिंग, तो आपको एक जर्मनी की वीडियो मिलेगी, SHARE शेयर, SHARE शेयर, फिर NTING शेयरिंग। तो बेसिकली शेयरिंग जो है वो पेरेंटिंग का से ताल्लुक रखता है। मतलब ये कि आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत शॉकिंग सा फील होगा कि क्या दिखा रहे हैं। हम एआई की दुनिया में रह रहे हैं, आप जानते हैं ना। अभी कुछ दिन पहले कुछ एक चल रहा था कि आप 50 साल बाद कैसे दिखेंगे, या श्री राम कैसे दिखते थे, या महात्मा गांधी बचपन में कैसे दिखते थे, वो सब उधर उधर अपना एल्गोरिथम चला के वो बना लेता है। शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम अपने बच्चों की, आज हमारे बच्चे को प्राइज मिला, आज हमारे बच्चे ने यहाँ पे डांस किया, आज हमारे बच्चे गोवा गए हुए हैं, आज हमारे बच्चे पिकनिक के लिए स्कूल के साथ यहाँ गए हुए हैं, हम अपने बच्चों की बहुत फोटोग्राफ्स स्टेटस में शेयर करते हैं। मतलब एक तरीके से व्हाट्सएप का स्टेटस हमारा स्टेटस सिंबल है अब, कि भाई हम कितने अच्छे हैं, हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, हम कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारे पास क्या गाड़ी है, आज हमने गाड़ी खरीदी है, हम गाड़ी फोटो खींच के ले गए, देखिए हमने आज एक नई किया खरीदी है, सब स्टेटस पे हम डालते हैं। मैं नहीं करते हैं, मैं करती हूँ, बहुत वो है, ये बहुत एक्टिव, जितनी ये एक्टिव है उतनी मैं इनएक्टिव हूँ। मैं कभी स्टेटस लगाती नहीं, मुझे लगता है 2 साल पहले वो भी मेरी किसी फ्रेंड ने लगाया था। तो अब मैं इसके इन दोनों के डिस्कशन के हिसाब से क्या बोलूं कि मैम ठीक है या मैम ठीक है, दोनों अपने अपने जगह ठीक है। बट मैम क्या कर सकती हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस में ऑप्शन होता है सेटिंग में कि कौन देख सकता है, मैं वही करके लगाती हूँ, बस हमारे अपने चुनिंदा लोग, ये नहीं जो कारपेंटर भैया आए उनको भी पता चल जाए कि अरे भाई हमारी बिटिया जो है फलानी जगह गई है घूमने के लिए या जीत के आई है, या फिर सारी दुनिया को पता है जो भी हमारे घर एक बार के लिए आया, हमने उसका नंबर सेव किया, उसको हमारा नंबर दे दिया, तो नहीं। सो यू कैन एक्चुअली इंश्योर कि आप व्हाट्सएप स्टेटस सबके साथ शेयर ना करें, जिनसे आप चाहते हैं कि शेयर हो बस उन्हीं को दिखाएं, सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। जिसको 1-2 ही दिखाना है उसको एकदम स्पेशली एकदम उसको 5 लोग 2 लोग, अब बिल्कुल एब्सोल्युटली। अब बहुत गुस्सा आ रहा है, आज लड़ाई हो गई घर में,
वाइफ को बताना है कुछ कोटेशन से कि हमारा दिमाग बहुत गर्म है, या हस्बैंड को बताना है कि भाई तुम देखो तुम घर पहुंचो, वो तो हस्बैंड वो आप व्हाट्सएप स्टेटस जाके लिख दीजिए ओनली हस्बैंड ओनली वाइफ, कोई नहीं देखेगा। आपको गुस्सा आ रहा है आप उनको बताइए। प्रोफाइल पिक्चर हटा के भी किया जाता है। So the point is, it's all about safety. How much visible you want to be to the world, that is important. मतलब कितना visible आप होना चाह रहे हैं। So अब हम आते हैं इसी कहानी के साथ vulnerabilities पे। 3 terms है जो important है, vulnerability, threat और risk। अगर हम इन 3 terms को समझें और इसके हिसाब से हर चीज पे सोचें, तो हम लोग थोड़ा, जैसे घर जब हम लोग वहां जाते हैं, पहले भी मम्मा पापा के साथ जब हम ट्रेन में जाते थे, पहले तो वो चेन लगती थी, फिर लॉक, घर में लॉक, फिर जैसे ही हम पहुंचे तो बर्थ के साथ चेन आती थी, वो अटैची के अंदर घूमती हुई कि भाई कोई लेके ना जाए। फिर चप्पलें भी गायब हो जाती थी, तो चप्पलें अटैची के ऊपर, कहने का मतलब ये है आपकी सिचुएशन चेंज हुई, आपके सेफ्टी मेजर्स चेंज होते जाते थे। तो यहाँ पर क्या हो, जितना भी सोच सकते थे माँ बाप की क्या गड़बड़ हो सकती थी, वो सबके हिसाब से सेटिंग करते थे। सिमिलरली रियल वर्ल्ड में भी आपको ये ढूंढना है कि क्या यहाँ पे ब्रीच हो सकता है, क्या वीकनेसेस हैं इधर। अगर आप ये आइडेंटिफाई करते हैं तो आप वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करके वही रोक देते हैं, आप आगे बढ़ते ही नहीं। तो वल्नरेबिलिटीज क्या हो सकती हैं? ह्यूमन लेवल पे हो सकती है। अब भाई हम ही ने, मैं आपको इस पे किस्सा सुनाती हूँ, बहुत ही खतरनाक किस्सा था ये। तो हमारे स्कूल में जब मैं पढ़ाती थी, एनुअल डे होता है, एनुअल डे में कंप्यूटर डिपार्टमेंट को सारा काम करना होता है, ये भी कि पीछे क्या फोटो आएगी, क्या आगे बढ़ेगा, सब कुछ। तो बच्चों को हमने डिसाइड किया, मेरी जूनियर ने, कि मैम चेतना हम 2 बच्चे असाइन कर लेते हैं हर के साथ, वो बच्चे बड़े इनोवेटिव होते हैं, अच्छे अच्छे एनिमेशंस बना देंगे, उनको बोल देंगे। ठीक है, बोल दीजिए। हो गया। तो उसने मुझे मेंशन किया कि हम ना एक कॉमन ईमेल बना रहे हैं, उसके थ्रू हम बच्चों से डेटा ले लेंगे, पासवर्ड मेरे पास भी, उसके पास भी, वी विल मैनेज। ठीक है। अब मानेंगे नहीं, 1.5 साल बाद प्रिंसिपल ने मेरी फ्रेंड को बुलाया, उसको बुलाने के पहले मुझे बुलाया। मैं कहा हाँ जी मैम क्या हुआ? तो शी सेड कि चेतना, पेरेंट का कंप्लेंट आया है, अभी तो मैंने उनको भेज दिया, पर ये देखो ये लेटर देकर गए हैं। अब उस लेटर में जो लिखा उसको देख के तो मेरी बिल्कुल ही पैरों से जमीन निकल गई। कि लिखा हुआ ये था कि टीचर बाय द नेम, स्क्रीनशॉट मेल का, और एक बहुत ही वाहियात वल्गर ईमेल फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट थी। अब मैं उसको पढ़ के 2 मिनट तो नहीं समझ पाई कि ये क्या हुआ, उस समय तो ब्लैंक। फिर 2 मिनट बाद मेरे को जब दिमाग ठीक, मैम ये कुछ गड़बड़ है, ऑफ कोर्स दिस कांट बी मोना, मुझे आप बात कर रहे, तो दिस इज नॉट मोना, कुछ गड़बड़ हुई है। ये बात मैं आज की नहीं कर रही हूँ, ये बात मैं कर रही हूँ 2008 की, पुराना, जब साइबर सेफ्टी सिक्योरिटी हम बात नहीं करते थे इतनी। अब आई वेंट टू मोना, मैंने कहा अब मोना की हालत खराब, मोना तो रोना शुरू कि भाई अब हम नहीं समझ पा रहे फॉर जस्ट दैट पूरा डे कि ये क्या हुआ। तो अब हुआ कि बच्चों को पकड़ा जाए, हमारे पास तो वही होते हैं, कोई ना कोई तो घर का बेदी लंका ढाई कर देता है बच्चा, तो हमने कहा चलो किसको पकड़े। पर उतनी देर में ही मुझे ध्यान आया कि जो ईमेल आईडी थी, ये तुम्हारी ईमेल आईडी तो नहीं है। तो उसने कहा ये तो वो वाली जो मैंने एनुअल डे के लिए बनाई है। तो मैं कहा किसके पास है? सबके पास। तो वो बच्चों के पास थी। तो एक्चुअली वो जब ईमेल आईडी बनाई तो हमारी फ्रेंड ने, डिटेल्स तो उसकी है, आइडेंटिटी तो उसकी है, पासवर्ड बच्चे के पास भी है। अब जब बच्चा उसको यूज कर रहा है तो ऑफ कोर्स किसका इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि कौन कर रहा है ये काम? हमारी फ्रेंड। आप समझ रहे हैं? कभी कभी अपने बच्चों के साथ घर में भी हल्के में, बस क्योंकि हमारे बच्चे ही तो हैं, चलो ये पासवर्ड है बेटा, ले लो, इसको जब कहीं पेमेंट करना हो ना बेटा तो ये पिन कर देना। हम ऐसे छोटा सा बता देते हैं, सोचो बच्चा ही तो है हमारा, बट वो भी इंसान है। ये हमें नहीं भूलना है, एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। तो आपकी जो चीजें हैं जिससे आपका ताला खुलता है, वो आप ही को पता होना चाहिए और किसी को नहीं। तो पहली वल्नरेबिलिटी तो ह्यूमन है। फिर फिजिकल, जैसे हमने डिस्कस किया हार्डवेयर से रिलेटेड, कि अपनी चीजों को भी आप लॉक करके रखें। देन नॉन फिजिकल, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटा, ऐप परमिशंस। जैसे हम फोन में ऐप डाउनलोड करते हैं, वो पूछता है चलिए आपको सब परमिशंस देनी है, कॉन्टैक्ट की परमिशन, कैमरा की परमिशन, ऑडियो की परमिशन, इसकी परमिशन, उसकी परमिशन। भाई क्यों चाहिए परमिशन? और हम यस 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 करके ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। आप मुझे बताओ कोई ऐसी ऐप जिसके अंदर कैमरे की, कभी अगर आप शॉपिंग करने भी जा रहे हो, शॉपिंग ऐप भी है अगर, उसका कैमरे से क्या ताल्लुक है? नहीं देनी हमको परमिशन, हम नहीं देंगे। हमारी ऑडियो से क्या ताल्लुक है? हम आपको ऑडियो क्यों भेजेंगे? तो हमें नहीं देना। हाँ, फिर वो कहते हैं, हाँ, फिर वो डाउनलोड नहीं होते।
जब डाउनलोड नहीं होते और अगर हमको वो चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? ओनली दिस टाइम या फिर while using the app. इसके अलावा ना आप हमें देखें, इसके अलावा ना हमें आप सुने. It's been some time, हाँ. It's been some time now, right? तो वहाँ पे भी आपने vulnerability को वहीं पकड़ा कि भाई नहीं, जो परमिशन देनी है वही देंगे, इसके अलावा हम आपको परमिशन क्यों दें? नहीं देंगे. और ट्रैक रखें उस चीज का. आप ही के फोन में ऑप्शन होता है, आप देख सकते हो कौन सी एप्स आपका कैमरा यूज कर रही है, कौन सी ऐप आपका ऑडियो यूज कर रही है, आप उसको डिसेबल कर सकते हो. वहाँ पे सर सेटिंग्स के अंदर परमिशंस और कोई भी चीज हो आप अगर ऑनलाइन में पूछेंगे वो आपको तुरंत स्विच स्टेप्स दिखाएगा. चैट जीपीटी से बोले कि भाई मैं कैसे प्रोटेक्ट करूँ, इतनी बड़ी स्टेप्स देगा हर के साथ. कई बार वर्जन्स चेंज हो जाते हैं तो ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं. पर हमें तो हमेशा एक ही प्रॉब्लम है ना कि हमारा डेटा शेयर ना हो. हमारा फोन नंबर ये है, इसके क्या स्टेप्स होंगे, राइट? सो हमने सेफ्टी की बात करी, ये हमने डिस्कस कर लिया. यस. सो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें ये 3 मुद्दे हैं. हमें अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करना है, हमें अपनी पर्सनल डेटा और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, और एट द सेम टाइम हमें अपनी हेल्थ और वेलबींग को भी प्रोटेक्ट करना है. हेल्थ और वेलबींग क्यों, कैसे? बस स्क्रीन टाइम या और कुछ भी? जैसे कि कुछ साल पहले जो स्कैम आ रहा था वो ये आ रहा था कि आपके पास एक वीडियो कॉल आती है, वीडियो कॉल आप ओपन करते हो तो वो पोर्नोग्राफी प्ले करते हैं वहाँ पे, अडल्ट कंटेंट. फिर जैसे ही वो प्ले होता है साथ में आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है. फिर आपके पास उसकी वो जाती है, मैसेज जाता है विद दैट वीडियो. आप देख रहे हो, हमने देख लिया, आपका सारा कॉन्टैक्ट हमारे पास है, कॉन्टैक्ट लिस्ट हमने एक्सेस हमारे पास है, हम ये आपके घर में सबको भेज देंगे. नहीं तो आप हमें 50,000 रुपए ट्रांसफर करो. It happened? Yeah. Oh. There was a man and he was doing a video call and he was mimicking the voice of a girl. और my father told me कि he was very much intimidated, घबराए हुए थे. वो पुलिस ऑफिसर रहे हैं लेकिन फिर भी घबराए हुए थे कि बेटा ऐसे ऐसे मेरे पास एक लड़की ने कॉल किया है and she was portraying everything. I cannot say. Understood. And उन्होंने क्या करा, मुझे फोन नंबर दिया उसका. And there was a terminology that you have used before, social engineering, and I have used it sometimes. So I used this social engineering चीज मैंने उसके ऊपर यूज करी, and it came out कि उसने क्या करा था कि he was recording each and everything. जो मेरे फादर ने गलती से उठाया था उसको, और उन्होंने जो है वीडियो प्ले करके दिखाया कि ये जो है he was watching these kind of things, और ये मेरी बेटी से ऐसे बात कर रहा है, ये कर रहा है, पैसे दो अदरवाइज हम आपके आगे डिस्कस. एक्चुअली में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, अगर मैं इधर पे एक बात लेकर आऊँ कि इवन ही वाज अ पुलिस ऑफिसर, फिर भी किस चीज के कारण वो घबराए होंगे? रेप्यूटेशन, मेरी इज्जत, सोसाइटी में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर दैट दीज हैकर्स, दीज पीपल जो इस चीज का फायदा उठाते हैं. आपके इमोशन, डिजिटल अरेस्ट के इतने केसेस आप सुनते हो आजकल, कितने, क्यों, कैसे? फिर उसका कारण क्या होता है? सिर्फ यही कि भाई आपके पैकेज में ड्रग्स आए, हम नहीं, मेरा नहीं है, नहीं जी आपके नाम से, अब आपके बताइए क्या इज्जत रहेगी? तो आप बोले भैया कोई इज्जत की जरूरत नहीं है, पुलिस स्टेशन चलते हैं वहीं बात करेंगे. ईमेल भी आता है, FIR आता है, सब कुछ आता है. आप बोले नहीं हम जो लेंगे, अगर अरेस्ट होना भी है तो पुलिस स्टेशन में अरेस्ट होंगे, आपसे क्यों अरेस्ट, अकेले ऐसे रियल वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं. दे आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ इंश्योरिंग कि आपके अंदर इतना डर पैदा कर दिया जाए कि आप खुद ही अपने आप को बचाने की कोशिश करने लग जाए. एक सेकंड, इनकी सर की बात को मैं एक्सटेंड अपनी बात को करते हुए एक्सटेंड और खत्म. जैसे सर ने कहा वैसे वो न्यूज में आया था, एंड दैट बॉय जिसके साथ ये हुआ उसके साथ भी वही हुआ. उसने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी कि भाई देखो ये वीडियो मेरी बनाकर मुझे भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ, जबकि ये फोन आया था. तो आप देखिए, तो फिर साइबर सेल ने उनको पकड़ा तो पता चला कितने लोगों को उन्होंने ऐसे ट्रैक किया हुआ था. तो पॉइंट इज कि उस लड़के ने हिम्मत करी तो वो न्यूज़पेपर में छप गया, पुलिस स्टेशन में पुलिस को पता चल गया, एटलीस्ट उसके बारे में अवेयरनेस होनी शुरू हो गई कि भाई. तो इसीलिए जब कुछ हमारे साथ होता है तो उसको रिपोर्ट करना, इसलिए सिर्फ इसीलिए नहीं कि हमारा सामान लौटा है, इसलिए भी जरूरी होता है कि कोई और उसका शिकार ना बने, राइट? और ये सब चीजें जो हम बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है, हमारी
ऑफ कोर्स वेलबींग तो खराब होती है ना, उतने में तो हम लोग बिल्कुल ही उस समय परेशान होते हैं टू द हेड, राइट? तो इसमें वल्नरेबिलिटी क्या थी सर की भी? वल्नरेबिलिटी क्या थी, वीकनेस क्या थी? सर ने क्या उठाया? एक वीडियो कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर। तो ये पहली गलती हमसे हुई कि हमने किसी अननोन नंबर का वीडियो कॉल उठाया, which we should not. जब भी केबीसी स्टार्ट होता है ना, जी, केबीसी जब स्टार्ट रहता है, हाँ। सीजन आता है और वो चलता है, जब उस टाइम पे देखेंगे व्हाट्सएप पे एक कॉल जरूर आएगा केबीसी का कि आपका ये यहाँ नंबर लगा, और वो वीडियो कॉल में आएगा, उसके बाद फिर वो मैसेजेस आने लगते हैं। So we don't have to give it to it. हम सबको लगे हम सभी करोड़पति बैठ जाएंगे और कुछ तो बने ना बने अमिताभ बच्चन से मिल लेंगे भाई वहाँ जाके, नो? So they know कि क्या चीज साइकोलॉजिकली आपको वो कैसे हर्ट करते हैं। एक मिनट पीछे सुन लो फिर आपसे बात करते हैं। हाँ इसके पहले मैं एक जगह पोस्टेड, वो एरिया पूरा का पूरा साइबर क्राइम वालों का था। वहाँ के लोगों ने शाहरुख खान का पैसा एक उड़ाया था 2016-17 में, वही के लोगों ने उड़ाया। आप तो बहुत ही उच्च जगह से बातचीत हुआ, तो बातचीत करा तो उसने उसी समय उसको दो समझ नहीं आता था, बोला जो जितना डर गया, इसके पास इतना लालच है, उससे लोग उतना पैसा ले लेते हैं। भाई अमजद खान ने बोला है ना, द ग्रेट अमजद खान इन शोले, जो डर गया तो डरना नहीं, इम्पोर्टेंट ये है। यस, उसके घर में ज्यादा पैसा है। यस, देयर इज वन मोर स्कैम गोइंग ऑन, और वो स्कैम ऐसा है कि आपको मेल आता है। आई रिसीव्ड दैट मेल पर्सनली, आई कैन इवन शो यू। तो उसमें क्या होता है, आई रिसीव्ड अ मेल फ्रॉम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली। हाँ, it was a proper kind of I mean order, Court order. हाँ, but I know ACP of Delhi कौन है, he is a very good friend of mine, and हम सब ना आपके साथ जुड़ जाते हैं इसके बाद हम सब एक ग्रुप में बुलाते हैं, जितनी तकलीफ है सर के पास। एक्सपीरियंस बहुत है। It was a very elaborate letter, और उसके अंदर पे जो है मेरा नाम कहीं नहीं था, and it was mentioned कि police has been I mean following you for so many days, for so many months, and your dark tactics have been revealed. You are drug dealing, you are human trafficking, you are this and that, and you have to present yourself before the court or before the office of ACP, or you will within 24 hours. Within 24 hours. सर भी हो सकता है कि इस चीज का शिकार रहे। तो और कहते हैं कि एक और चीज है, if you are opening this mail, we will automatically know कि आपने मेल खोला है। That means कि आपका टाइमर शुरू हो चुका है। अब 24 घंटे के अंदर either reply or you will be going आपके साथ। So देखिए दूसरा एस्पेक्ट जो आया, दूसरा एस्पेक्ट जो आया वो आया अर्जेंसी। एक तो डर आपकी इज्जत खोने का, दूसरा अभी करो, इसी समय। अभी नहीं करोगे तो मतलब इतना आपके लिए पैनिक, तो ये दूसरी बात है, अर्जेंसी नहीं हो सकती। जी सर, एक बार इनके सुन के फिर आपके पास। जी सर। मैम एक्चुअली आप सभी को जोहार, मैं उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जानता तो ये जो शुरू हुई है, इसकी एक टीम है वहाँ पे, मतलब अगर कोई भी कर रहा है ना तो सबका एक टीम है, और उसमें ऐसे नहीं कि एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं। अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है ना, वो एक एक डिपार्टमेंट में चल जाते हैं और उस डिपार्टमेंट में वो बहुत उसका नॉलेज लेते हैं, ज्ञान करते हैं। अभी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी घुस चुके हैं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से लेटर आएगा, जैसे मैम बताए PDF वगैरह, ठीक है, या छुट्टी का, इवन कि आपने ट्रांसफर के लिए डिप्यूटेशन के लिए लेटर दिए है ना, तो आपको वहां से आएगा डिपार्टमेंट की ओर से कि आपको एक्सेप्ट किया गया है, आप इसको टच करें और अपना फिलअप करें कहाँ जाना चाहते हैं, इस तरह का। तो थोड़ा सा हमें अगर 2 मिनट का टाइम में ऐसा हो गया है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे कैसे शुरुआत हुई है। एक्चुअली ये कहानी उस टाइम की है जब एयरटेल में जो हम लोग उस टाइम रिचार्ज करते थे, लाइफ टाइम इनकमिंग और बहुत सारा ज्यादा से ज्यादा एक पैसा रहना, तो उसी टाइम से शुरू हुआ था। उस टाइम पैसा जो मारा जाता था वो आपके मोबाइल में कितने बैलेंस होते थे उसको मारते थे और दूसरे में ट्रांसफर कर देते थे। जैसे आपका रिचार्ज कर दिए, अगर 1000 रुपए का रिचार्ज आपको कराना तो 200 में कर दिए, वो तो दोनों को बेनिफिट होता था। उससे पकड़ाने लगा, पुलिस एक्टिव हुई, उससे आगे बढ़े, फिर बैंक में ट्रांसफर कर लेते थे दूसरे अकाउंट में, उससे भी आगे बढ़े, उसमें भी पकड़ाने लगे। अब वो लोग आईडी बनाते हैं, और उस आईडी को बनाने में जैसे पैसा मारने वाले एक टीम है, आईडी क्रिएट करने वाले टीम है, आईडी को बेचने दूसरे जगह जाके आईडी को बेचने वाले टीम है, देन आईडी से जो
ट्रांजेक्शन होता है उसकी अलग टीम है। तो मतलब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और इसमें एक ये भी है जो ऑर्गेनाइज एक टीम ये भी है कि किस किस डिपार्टमेंट में कहाँ फंस सकते हैं, क्योंकि अभी लोग इतने जागरूक हो गए हैं, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, तो बहुत कोई एक्टिव हो चुके हैं इसमें जागरूक, और इसमें भी वो लोग अभी भी कर रहे हैं। तो एक एक्सपर्ट उसमें बैठे हैं कि किस जगह संभावना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट जाना है। अभी एक रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मतलब मेरे यहाँ एक टीचर है, फीमेल टीचर, उसने डिप्टेशन के लिए डीओ सर के यहाँ दिए थे एप्लीकेशन। देन उसके पास उस तरह से आया, मेल आया उसका मेल आईडी में, और उसमें लिखा था कि आपका ये जो एप्लीकेशन है आपका एक्सेप्ट किया गया है, आप किस स्कूल में जाना चाह रहे हैं और किस स्कूल में है वो आप फिलअप करें इस लिंक के थ्रू। उसने मुझे कांटेक्ट की, तो हम उसको बताएं कि नहीं, खबरदार नहीं करना। अगर वो कांटेक्ट नहीं करते और फिल कर देते तो फिर वो फंस जाते उसमें। तो एक से कब किस तरह से ट्रिक करते ये हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो मूवी थी ना गब्बर इज बैक। दूसरा और एक चीज, देखिए आप लोगों ने। एक चीज और जोड़ना चाहेंगे सर टाइम थोड़ा सा कम। जी 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 जी। एक चीज और जोड़ता है वो लिंक और इन सब चीजों से, इमोशंस, ये वो बहुत ज्यादा के जोड़ते हैं जिसमें हम फंसते हैं। साइकोलॉजी। थैंक यू। आई एम सो सॉरी सर, मैं अभी आपसे जी आप बोलो। मैं थोड़ा दूसरा पहलू लाऊंगा इसमें। सबने कह दिया फंसते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि केबीसी जब बात चली, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ उसको, तो 2023 में मेरा कॉल लग गया, और जो केबीसी का जो प्रोसेस है वो कॉल नहीं आता, यू विल ओनली गेट ए सिंपल मैसेज, SMS, और मुझे वो मैसेज आ गया, ठीक है ना। पहला कॉल आया, दे आस्क्ड मी 3 क्वेश्चन, बड़े इजी क्वेश्चन थे, एंड देन दे शॉर्टलिस्टेड और मुझे मैसेज आ गया केबीसी का, आई वाज हैप्पी। उसमें आ गया कि आपको मुंबई ऑडिशन के लिए, इतना आया आपको जाना। सो मेरे ही कुलीग हैं, रेदर वो प्रिंसिपल हैं मैम, राना मैम, वो भी केबीसी के लास्ट आई थिंक 21 या 20 में वो गए थे केबीसी में, लास्ट जो एपिसोड था। तो मैं आई कॉन्टेक्ट हर कि भाई मैम ऐसा हो गया है तो क्या करें। तो शी सेड कि भाई मेरा तो पंचकुला में हुआ, कि मेरा शिमला से पंचकुला में ऑडिशन हुआ था, फिर दोबारा हो गया कि भाई मुंबई हो गया। तो फिर मैं उन्होंने बोला कि आया तो ऐसे मैसेज आते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अब मैंने उसको एड्रेस लिया, वो कॉलेज का एड्रेस था वहाँ पर। सो फिर मेरे सिस्टर हैं वहाँ पर, सो आई कॉल देम कि ऐसे ऐसे दीदी ऐसा हुआ है तो आप करो, एंड शी वेंट देयर, उसी कॉलेज में गए, एंड दे शी फाइंड आउट कि भैया है, ठीक है, कि ऐसा यहाँ ऑडिशन होना है। तो मैं दूसरा पहलू भी ये बताना चाह रहा हूँ कि अब आप तो ये तो सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। सेकेंडली क्या हो रहा है कि एयरटेल कह रहा है कि 1800 नंबर से ये फेक कॉल है, ये कॉल है। अब आधे से ज्यादा कम हमारी कंप्लेंट्स कहाँ से आ रही हैं, वहीं से आ रही हैं। कभी आप कोई हेल्थ का देख रहे हो, कभी आपको बैंक से कॉल आ रही है, तो उसको तो हम सारा क्या कर रहे हैं, सुन ही रहे हैं, बार बार कहते कि अब हमने आपको इन्फॉर्म किया था, आपको बैंक के अकाउंट में ऐसा ऐसा था। तो मेरा ये कहना है मतलब कि दूसरा पहलू भी इसका थोड़ा बहुत डेंजरस है, कि जब आपको जब इन चीजों की जरूरत भी है, अब अगर मैं नहीं कहता और नहीं जाता तो चलो आगे नहीं हुआ, लेकिन दूसरा पहलू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको मान्य। एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे सर ने कहा वेरिफिकेशन, कॉल आने का मतलब जैसे आपके बैंक से कॉल आता है, तो बैंक से कॉल आया है तो आप बैंक में वापस वेरीफाई करें। डोंट गो अहेड विद एवरीथिंग, आंखें बंद करके नहीं, पूछेंगे, आप कंफर्म करेंगे सर मेरे पास सिर्फ 11 बजे तक का टाइम है। ओके जैसे बोले मैंने स्पैम लगा दिया था, मैं नई दिल्ली स्टेशन पे कैब बुक किया, अब दिखा रहा था 2 मिनट, अब 10 मिनट हो गया आया नहीं। फिर मैं फोन किया उसको कि कहाँ हो भाई, बोले बस सामने आप दिख रहे, मैं वो 10 मिनट से कार लगा, जब मैं देखा तो स्पैम वाले कार 35 बार उसने फोन किया, तो मेरे सामने जस्ट उसमें स्पैम लगा हुआ था, राइट। वो स्पैम से उसको, बिकॉज बहुत लोगों को बहुत कॉल हो जाती हैं, तो कई बार लोग स्पैम कर देते हैं, और ये भी एक गिमिक है, ये वो लोग भी ऐसा करना शुरू करते हैं कि जानबूझ के वेरीफाइड कॉल्स को स्पैम बार बार स्पैम रिपोर्ट करना शुरू करते हैं। बिकॉज रिपोर्टिंग कौन कर रहा है ये तो कोई चेक करने नहीं आ रहा ना, कि किसने रिपोर्ट किया कि ये स्पैम था। ऐसा फ्लिपकार्ट में भी होता है, ऐसा फ्लिपकार्ट में भी होता है आपका फोन लिखा था, आप लोग नहीं रिसीव किए तो
समझ गए। वो ये कॉलर वाला है ना मैम, ऐसे पायलट में हुआ था, तो अभी ट्राई ने शायद ये किया है कि जो भी आपको कॉल करेगा उसका नाम यस यस अब होना शुरू हो गया राइट। ट्रू कॉलर हमारे लिए कितना सेफ है, क्योंकि कहते हैं ट्रू कॉलर वही डेटा वही चोरी करता है। देखिए ट्रू कॉलर ही चोरी करता है मैम, डार्क वेब पे पूरी देखिए बात ये है कि चाहे कोई भी ऐप हो, ये कहना कि वो लोग चोरी करते ठीक नहीं है। मे बी शायद उनका डेटा इतना सिक्योर नहीं है कि उनका डेटा डार्क वेब पे चला गया है, बट द पॉइंट इज कि चाहे आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करें, वेरीफाई आप ही को करना है। आप अंधाधुंध नहीं विश्वास, क्योंकि वो हरे में भेज रहा है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो नहीं। आप उसे बस कंफर्म जरूर करें कि क्या है। तो ओटीपी सिस्टम कर दिया, वो और बेकार हो गया एकदम। चलिए लेट मी जस्ट कंप्लीट माय प्रेजेंटेशन, आई एम सो सॉरी। हाँ जी, सो पीछे जो मैं आपको बता रही थी, जो भी ये सब चीजें होती हैं, इनफैक्ट इवन स्कूल एट स्कूल लेवल बच्चे क्या करते हैं, वो एक दूसरे की आईडीज बना लेते हैं, फिर उस आईडी से तंग करना शुरू करते हैं या उसके ऊपर गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं बच्चों को हरास करने के लिए। तो या इसी तरीके से मेल खुली हुई है किसी की भी, तो मेल उससे किसी को भेज देना, छोटी छोटी चीजें बच्चे करते हैं, उनको समझ नहीं आता। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है एट दिस लेवल टू अंडरस्टैंड कि हर एक चीज आईटी एक्ट के अंदर पनिशेबल है। अगर आप आईटी एक्ट को एक्सप्लोर करेंगे, हर चीज के साथ क्या पनिशमेंट है, क्या उसके साथ फाइन एसोसिएटेड है, वो आपको पता चलेगा। और एट स्कूल लेवल भी हमको बच्चों में ये जागरूकता जगानी चाहिए, टीचर्स को भी पता होना चाहिए और बच्चों को भी पता होना चाहिए। तो जब डेटा हम प्रोटेक्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये चीजें आप ध्यान रखें कि हु, व्हाट, व्हाई, हाउ और कब तक, हाउ लॉन्ग। कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, कोई डेटा आपका स्टोर कर रहा है, कब तक, कितने दिनों के लिए करोगे, क्यों करोगे। जैसे आपसे कैमरे की बात थी कि कैमरा एक्सेस चाहिए, क्यों भाई, हम कितनी देर के लिए एक्सेस, हमेशा के लिए थोड़ा ना एक्सेस देंगे, ओनली जब मैं आपका ऐप यूज करूंगी तभी। तो ये सब चीजें अगर हम तय करने लग जाएंगे, पूछने लग जाएंगे, तो हम थोड़ा सा अपने आप को थ्रेट से दूर रखेंगे और वल्नरेबिलिटी तक ही रुक जाएंगे। नहीं तो वल्नरेबिलिटी तो रिस्क है, वीकनेस है। थ्रेट जो है वो होता है कि आपके ऊपर क्या अटैक हो सकता है, और रिस्क होता है अटैक होने के बाद आपके साथ क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। तो हम अपने आप को वी पे ही रोक लें और टी और आर पे ना आए, वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो ये भी बिवेयर ऑफ व्हाट यू लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपकी रेपुटेशन ऐसे भी स्टेक पे होती है। आजकल अगर आप जानते हो तो सोशल मीडिया की प्रोफाइल जो होती है उसको स्कैन किया जाता है बाय कॉर्पोरेट्स बिफोर हायरिंग। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को हम हायर करने जा रहे हैं उसका पर्सनालिटी कैसी है। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। अगर हम सोचते हैं कि भाई हम वहां पर जो भी लिखें चलेगा, नहीं चलेगा। आप चीजों को लूजली नहीं ले सकते। कमेंट्स के बेसिस पे कितने लोग आपके बारे में राय बना लेते हैं, आपने क्या लाइक किया उसके बेसिस पे कितने हैकर्स राय बना लेते हैं कि आपको क्या तरह का कंटेंट पसंद है। तो आप बहुत ध्यान रखें कि आप क्या लाइक करते हैं, क्या कमेंट करते हैं और क्या शेयर। जो चीजें आप रियल वर्ल्ड में नहीं करते, वर्चुअल वर्ल्ड बंद है ये सोच के बिल्कुल ना करें, वो सबसे ज्यादा खुला हुआ है, राइट। नेक्स्ट, इसके अंदर जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, आप बस ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर से इसका जवाब दें, ठीक है। पहला, चेंज योर डिवाइसेस यूजिंग चार्ज योर डिवाइसेस यूजिंग USB ports in public places. Never. क्यों? वो सारे डाटा Yes, do checking. पर अगर सिचुएशन ऐसी हो गई कि आपको नहीं मिल रहा ये वाला पॉइंट और आपका चार्जर भी आपके पास नहीं है, पर आपको चार्जिंग करनी है, आपके पास वायर है, तो आप क्या करोगे? मजबूरी है, स्विच ऑफ द फोन। और स्विच ऑफ द फोन के साथ भी सबसे इंपॉर्टेंट, उसको लॉक करके स्विच ऑफ। क्योंकि स्विच ऑन तो कोई कर सकता है, आप 2 मिनट यहाँ से हटे, किसी ने आपको भटकाया, आप हटे और किसी ने ऑन कर लिया, बट लॉक, राइट। तो करना पड़े तो ये मतलब ये नहीं कि किसी चीज को ना का मतलब है हमें उसे करना ही नहीं है, हमें करना पड़े तो हम उसको किस तरीके से बचा सके। नेक्स्ट, यूज ओन वाईफाई और हॉटस्पॉट व्हेन इन पब्लिक प्लेसेस इंस्टेड ऑफ द हाई स्पीड पब्लिक वाईफाई अवेलेबल टू यू। पब्लिक वाईफाई है उसकी जगह आप अपना हॉटस्पॉट यूज करें, ये ऑलवेज या ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट है, कीप योर डिवाइसेस अनलॉक्ड। नेवर, अपना डिवाइस कभी भी अनलॉक ना, किसी भी सर्कमस्टांसेस में नहीं। नेक्स्ट, sign out of all your accounts when accessing them on others devices. अब इधर आप एनसीईआरटी में आए, अपना मेल खोला और आप चल दिए, नहीं, देखा नहीं, बट वी हैव टू लॉग आउट। मैंने लॉग आउट तो कर दिया था, बट somebody was trying to log in using my mail. वो आपके पास रिमूव अकाउंट भी नहीं करते, नहीं, रिमूव करना चाहिए, अकाउंट को रिमूव भी करिए, किसी को आपका ईमेल आईडी भी पता नहीं चलना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, गिव एक्सेस टू कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, कैमरा एंड ऑडियो टू ऑल योर एप्स। नेवर।
मतलब नेवर नहीं, समटाइम्स, हम समटाइम्स बोलेंगे ना, जस्ट बाय यूजिंग दिस ऐप, अगर हमें जरूरी उसको चाहिए तो तभी जब हम आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है इनेबल वेटिंग रूम्स इन केस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ऑलवेज अगर आप वेटिंग रूम एनेबल नहीं करेंगे तो आपका कंट्रोल नहीं रहता कि आपकी क्लास में कौन एंटर कर रहा है। तो आप ऑनलाइन क्लास लेंगे तो हमेशा वेटिंग रूम एनेबल करें। एंड मीटिंग इन केस ऑफ एनी अनवांटेड एक्टिविटी, बिल्कुल आप वहां पे डिस्कशन मोड में मत जाएं। जैसे ही आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, आप मीटिंग एंड करें इंस्टेड कि आप डिस्कस करें कि उस बीच में वो हैकर आपके लिए नहीं आया है, आपकी क्लास के बाकी बच्चों के लिए भी आया है। उसको टाइम मिलता है टू स्कैन कि किसका क्या आईडी है, क्या नाम है, क्लास क्या लिखी हुई है। सो नो, नेवर देन। यस, एंड मीटिंग हो गया। शेयर योर डॉक्यूमेंट इन एडिट मोड विद एवरीवन? नो, नेवर। व्यू और कमेंट। नेक्स्ट, keep all your documents private. Always keep all your documents always private. These are the ways you can avoid problems, right? ये आपका आईटी एक्ट है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट आपको बता रही हूँ कि 66C, D और E ये आईटी एक्ट के तहत आप पर्सनलाइज, मतलब कोई आपकी आइडेंटिटी चोरी करे तो उसे पनिशमेंट क्या मिलेगी, कोई आपकी चीजों को इमेज, आपकी कोई इमेज है उसको ट्रांसफर करता है बिना आपकी परमिशन के, जैसे बच्चे भी करते हैं कि आजकल, आज बताने की जरूरत है कि भाई ये पनिशेबल है, अगर किसी का पेरेंट जाके करेगा कंप्लेंट तो बेटा आप पकड़े जाओगे। तो ये सब चीजें पनिशेबल हैं, उस पर क्या पेनल्टी और वो है, फाइन है, वो इस पे सब मेंशन है। आप लिखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसका चार्ट एक क्लास में होना चाहिए एटलीस्ट कहीं पर लगा हुआ कि ये भैया गलत चीजें आप नहीं कर सकते। लगाना पड़ा था, राइट। सिमिलरली फिजिकल इफेक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए कि सिर्फ यहाँ पर फाइनेंस ही नहीं इन्वॉल्व है, आपकी तबीयत भी बहुत बुरी तरीके से बिगड़ती है बिकॉज ऑफ यूजिंग फोन। आप अगर ये देखें, अगर हम वो एवोल्यूशन वाला चार्ट याद करें, बचपन जब हम बंदर से इंसान बने वाला, वो फोटो अगर आपके दिमाग में आती है तो हम कहाँ से शुरू हुए थे? हम ऐसे शुरू हुए थे। और आजकल हम कैसे रहते हैं? हम ऐसे ही रहते हैं सबके सब। तो हम वापस बंदर बनने जा रहे हैं। नो, आई मीन टू से आपको पता होना चाहिए देयर इज अ रीजन कि आप डायरेक्ट आपको सीधा रखना होता है। और क्यों बोलते हैं कि पढ़ाई करते समय हमारे मम्मी पापा कहते थे बेड पे ऐसे नहीं करो, टेबल लगाओ, थोड़ा ऊंचा रखो, क्योंकि जो गैप्स है वो बढ़ते हैं। आप नोटिस करें, ये टेक्निक प्रॉब्लम कहलाती है, राइट? कितने लोगों को अब ये शुरू हो गया है कि अगर वो जरा सा भी सर झुकाते हैं तो उनको नॉजियस फील होता है कि वॉमिटिंग आ रही है, सर्वाइकल की तकलीफ ज्यादा होने लगी। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हाउ यू वर्क, बिकॉज आप ऑल द टाइम ऐसे देखे बैठ रहे हैं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम सिम्टम्स, ड्राई आईज, मतलब खुजली बहुत होती है आंखों में आपको, या ब्लड हो जाता है, आंखों में से पानी आता है। तो ये सब चीजें अगर आप नोटिस करें, 58% ऑफ इंडियंस गोइंग टू बेड आफ्टर 11 PM। हम लोग 11 बजे के बाद जा रहे हैं। ब्लू लाइट जो है उसको हमें अवॉइड करना है। अब किसी को चेक करना ही है, अब क्या करें, स्कूल के व्हाट्सएप पे सारे मैडम प्रिंसिपल भेजती हैं रात में 10 बजे के बाद, तो अब हम क्या करें, तो आप अपनी स्क्रीन को ग्रे कर दीजिए। देखना तो है पर उसका हम सोल्यूशन क्या ढूंढें, तो उसको हम ग्रे स्क्रीन कर लेंगे। सिमिलरली जब आप बैठते हैं, पोजीशन आपकी बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। नॉट ऑलवेज आपका सर हमेशा जो नीचे वाला सिस्टम नहीं, एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखें। एक रूल होता है जिसमें हम कहते हैं ना कि एक तो आईज को हम बार बार ब्लिंक करना भूल जाते हैं, जबकि बहुत जरूरी होता है। फोन देखते समय हमारी आंखें हमेशा खुली रहती है, डोपामिन निकल रहा होता है ना खूब सारा, वाह, तो हम देखते रहते हैं आंख खोल के। सो वो नहीं, थोड़ा बीच में हमें जरूरत है कि हम उसकी या फिर अपने आप को स्क्रीन के टाइमर्स लगा लीजिए। आफ्टर सम टाइम वो बोलता है आपका टाइम अप हो गया, बंद कर दीजिए। एप्स, जैसे मुझे पता है कि अगर मैं एक म्यूजिक ऐप मैंने डाउनलोड की, खूब गाना बजा बजा के मैं डाल रही थी उसमें, गा गा के अरे यार ये अच्छा लगा, एक और गाती हूँ, तो एक दिन याद आया कि 4 घंटे से यही हो रहा था सुबह से। मैं यार तो रोज का हो गया, काम तो खत्म, गाने ही बज रहे हैं, हम ही लता मंगेशकर बनेंगे अगली लग रहा है। तो अब उस पर भी मेरे को अच्छा लगता है गाना, ठीक है, तो मैंने वहां पे लगाया टाइमर। अब ठीक वो बोलता है थोड़ी देर बाद आधे घंटे का टाइम आपका खत्म हो गया, मैं अभी शराफत से उसको बंद करके रख देती हूँ, हाँ जी चलो बंद हो गया। पहले थोड़ा सा जल गया था हाथ, फिर मैं बच गई। तो पॉइंट इज, सब कुछ करिए पर लिमिट करने का हाथ, जो वो है दारोमदार, वो भी आप पे है। और हर एक चीज सेटिंग्स में होती है। डिजिटल वेलबींग करके एक ऑप्शन होता है, आप जाके वहां सब कुछ कर सकते हो, अपना स्क्रीन टाइम देख सकते हो, कितने टाइम आप स्क्रीन पे लगे हुए थे, राइट? सो ये रीडिंग कर रहे हैं आप तो टेक्स्ट को बड़ा कर लीजिए, क्यों छोटा छोटा देखना है, बच्चों को भी सिखाइए। मेरी बेटियों को चश्मा लगा कोविड के बाद, बिकॉज जब वो 4th में थी, क्योंकि उस समय सब कुछ ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था, तो बच्चे बिल्कुल उसी में घुसे हुए थे। तो हमारी भी कमी, मेरी भी गलती रही कि मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। बड़ा कर लो जो पॉसिबल है बड़ा करना, छोटे में मत देखो, उसी में बैठ के होमवर्क करोगे, उसी में बैठ के कॉपी करोगे, बताना पड़ता है चीजें हमें। तो ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन नॉर्मली लोग नहीं एडजस्ट करते हैं, अंधेरे में भी उतना ब्राइट जितना कि लाइट में ब्राइट। तो वो सब छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो अपनी फिजिकल वेलबींग का ध्यान रख सकते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, डिजिटल डिमेंशिया,
कितने लोग कह सकते हैं कि हाँ हमें सबके फोन नंबर याद हैं जो हमारे घर परिवार के रिलेटिव्स हैं? ये अभी हम छोटे थे तो हमें याद था थोड़ा बहुत, विद एसटीडी कोड याद था, 0542 भाई बनारस का करेंगे फिर ये नंबर लगेगा। अब नहीं याद होते। अपना नंबर चेंज कर लूं मैं अभी तो मैं बोलती हूँ 1 मिनट को नंबर चेंज किया है, चेक कर लूं नंबर क्या है। Instagram, no one can even say कि मुझे दूसरी तीसरी जो वीडियो पहले देखी वो याद है सीरियसली। सो व्हाट इज हैपनिंग, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। बच्चे इतनी जल्दी क्यों इरिटेट होते हैं? आप ही हो जाएंगे। आप कभी देखिए कोई चीज ध्यान से देख रहे हैं, अगर आपको कोई बीच में टोक दे, रुको आ रहे हैं, एकदम से इरिटेट होता है इंसान। क्यों होता है? क्योंकि बायोलॉजिकली आपके दिमाग में केमिकल्स होते हैं, उनमें से एक केमिकल होता है डोपामीन। जो शराब वाला सिस्टम था ना, शराब छुड़ाए, नशा मुक्ति केंद्र, वो वाले केंद्र अब दोबारा बनेंगे। और बना भी है एक, अगर आप जाने इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर की पूरी कहानी है, और सफदरजंग में एक सेंटर है जो इसी का काम करता है कि जी आपकी नशा मुक्ति की जाती है। क्या नशा है? हमारा फोन का। बिकॉज डोपामीन इतना रिलीज होता है, वो डोपामीन रिवॉर्ड सीकिंग केमिकल है। अरे देखते रहो, तुमको ये अच्छे लगेगा, तुमको, वो आपको ये फील कराता है, तो आपको अच्छा लगता रहता है, आप करते रहते हो। डोपामीन को हम लोग नेचुरली रिलीज नहीं कर रहे हैं, अब हम उसको मैकेनिकली रिलीज कर रहे हैं। वो ऑल द मोर स्ट्रेस है। अब शायद कुछ जो नॉर्मल चीजों पे इस पे हम हंसते थे, उस पे आप देखें आपको हंसी भी नहीं आएगी अब, क्योंकि डोपामीन इतना एक्स्ट्रा रिलीज किया जा रहा है कि वो बेसिक चीजें में उनको मजा आना बंद हो जाता है। तो यू सी हाउ योर ब्रेन इज बीइंग प्रोग्राम्ड। डिजिटल डिमेंशिया, याद रहना कम हो गया है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोल्ड फिश जो होती है इसका सबसे छोटा अटेंशन स्पैन होता है, और कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग का अटेंशन स्पैन भी कम होता जा रहा है। ये देखिए रिसर्च है। एवरेज अटेंशन स्पैन 2000 में 12 सेकेंड थी और 2015 में 8.25, जो कि एक गोल्ड फिश से भी कम है। आप सोचो, हम स्टेम की बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं बच्चे इनोवेशन करेंगे। अब आप ये 8.25 सेकंड 2015 बता रही हो, अब तो और भी कम होगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मतलब आज के दिन में अगर आप चेक करना चाहते हो अटेंशन स्पैन, घर में जाके एक एक्टिविटी करो, घर में लगाओ टीवी, टीवी के बाद सीरियल में ऐड आने दो, फिर सबको मेजर करो, खुद को भी, कितना ऐड देख पाते हो आप? देखते हो या तुरंत नेक्स्ट चैनल? क्यों? आप वो सीरियल देख रहे थे, वेट करो उसके लिए, आ रहा है ऐड, आ रहा है, आने दो, बट आपको चैनल चेंज करना है। ओटीटी प्लेटफॉर्म खोलिए, डिसाइड कीजिए कि आज कौन सी पिक्चर देखनी है, उनसे शर्त लगा लीजिए, 1 घंटा तो आप डिसाइड करते रह जाओगे कि कौन सी देखें। अगर सारे दिमाग में पहले से फिक्स्ड हो तो बात अलग है, बट अगर ये बोलोगे ना चलो चलो आज हम बैठ के ना घर में पिक्चर देखते हैं, आप बैठिए, वाइफ को बैठाइए और आप सोचते रहेंगे अरे ये लगा, अरे नहीं इसमें तो अच्छा ये देखेंगे। इतना ऑप्शंस है, इतने ऑप्शंस हैं कि आप कंफ्यूज रहते हो हमेशा, क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल वेलबींग, फोमो। भाई स्टेटस ना चेक करें तो हमें तो भाई रात में नींद नहीं आएगी, मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं जरूर चेक करती हूँ सोने से पहले करके सबका खत्म हो गया। ये मैंने तब शुरू किया जब मैं पूरा स्टेज में हल्का लेते थे, क्या हो गया, मैं कहती किसी का बर्थडे मिस हो जाता है, किसी की एनिवर्सरी मिस हो, बाद में सब बोलते तुमको कभी याद नहीं रहता, विश हो जाता है। मैंने वो तो ठीक है पर सभी का मैं कहा है पता नहीं, तो फिर ध्यान आया कि जरा गड़बड़ है। तो अब क्या करते हैं, अब हम शुरू करते हैं वो किसी वाइंडो में छोड़ देते हैं, क्योंकि सबका दिमाग में नहीं घुसा सकते। और किसी का मैसेज ऐसे आ जाए कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो फिर लगता है भाई इसको पूछो फोन करके क्या हुआ, सब ठीक, कोई चिंता तो नहीं बेटा, कोई घर में कोई तकलीफ परेशानी, हम हैं, सारी दुनिया को बोल। फोमो, फोमो कन्वर्ट कीजिए जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। छूट गया, हमें सबकी जिम्मेदारी नहीं रखी हुई है, राइट? सो नेक्स्ट इज, जो इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो मैं फोमो और जोमो, फोमो को बनाइए जोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, नोटिफिकेशंस बंद कीजिए, कम मतलब हटा दीजिए। अगर आपको कुछ जरूरी नहीं है, जैसे व्हाट्सएप का हर स्टेटस आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आप नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए। अगर सिर्फ व्हाट्सएप ही जरूरी है तो बस व्हाट्सएप ऑन रखिए, दुनिया भर के और नोटिफिकेशंस का हमें कोई मतलब नहीं है। नोटिफिकेशंस को ऑफ करने का ऑप्शन होता है। जब आप नोटिफिकेशंस ऑन रखते हो तो क्या होता है, टुंग टुंग, आप काम करते करते देखते, अच्छा क्या था, अच्छा 15 मिनट 20 मिनट चले गए, फिर आप लौट के आते हो, सोचते यहाँ क्या था। आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी से डेटा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब जाता है उसका एक स्पैन होता है, टाइम स्पैन। अगर उसके बीच में आप तोड़ते हो तो आपका जो डेटा है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा सकता, आपको वीवर गजनी वाला सिस्टम हो जाएगा, तो ये बहुत टेंशन है। नेक्स्ट है एको चैम्बर्स। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मोदी जी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है केजरीवाल। मैं नेट पे लिखती हूँ भाई मोदी इज वेरी बैड,
अब आप देखोगे मेरी दुनिया सिर्फ उनके बैड से ही भरी हुई है। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? किसी भी चीज को आप कंप्लीटली बैड तो नहीं कह सकते ना, कुछ तो अच्छा भी होगा। पहले लोग चौपाल में बैठ के आपस में आर्ग्यूमेंट करते थे, डिस्कशन करते थे, कुछ बात पे मानते थे, कुछ बात पे नहीं। अब हम सारे और हमारे बच्चे भी एक ऐसे चेम्बर में जीते हैं जहां पर जो वो चाहते हैं फोन उनको वही दिखाता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अखबार पढ़ेंगे, हम अखबार पढ़ेंगे और हर समय उस तरह के न्यूज को नहीं क्लिक करेंगे कि वो बार बार फिर वही दिखाता है। मैं धुरंधर देखने गई, बड़ा मजा आया, अच्छी पिक्चर थी। आप मानेंगे नहीं, मेरा पूरा फोन इस समय धुरंधर के बॉक्स ऑफिस रिव्यू से हर दिन का, आज उसके 800 करोड़, आज उसके 850, आज उसके 870। मैं क्या बताऊं यार, क्या गलती कर दी मैंने। Do you understand? So this is algorithm. That is what they are craving for. एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम है सोशल डायलेमा आई गेस। सेंटर फॉर ह्यूमन टेक्नोलॉजी नाम की एक संस्थान है यूएस में, जहाँ पे गूगल का इंजीनियर है जिन्होंने ये शुरू किया है, जो इसी पे वर्क करते हैं कि भाई मत करो, यू दे आर एक्चुअली प्लेइंग विद योर ब्रेन्स, राइट। तो आप देखें, टाइम मिले तो कभी जरूर देखें, अगर यू विल अंडरस्टैंड कि कितना खतरनाक है वो सोशल जो इंजीनियरिंग का एल्गोरिथम है, वेरी डेंजरस। नेक्स्ट, सोशल वेलबींग, लोगों से मिले। अभी वो एक बड़ा छोटा सा जोक था, आया था कि भाई एक दिन क्या हुआ, बच्चे बैठे हुए थे, सब लोग खाना खा रहे थे, सडनली वाईफाई चला गया, तो बच्चे का मैसेज अगले दिन सोशल मीडिया अपने मैसेज पे आया कि यार आज ना बहुत दिनों बाद घर वालों के साथ खाना खाने का मौका मिला, पता चला कि अच्छे लोग हैं। आप सोचें, एक्चुअली पीपल डोंट हैव टाइम, बच्चों के पास समय नहीं, हमारे पास समय नहीं, आपस की बॉन्डिंग कहाँ हो रही है, कब हो रही है, किस वजह से हो रही है, पता नहीं, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन सब चीजों का ध्यान रखें, और कभी कोई इमेज आती है ना तो उसको एज इट इज फॉरवर्ड नहीं करें। गूगल में एक ऑप्शन होता है रिवर्स इमेज सर्च, उससे आप उस इमेज की क्रेडिबिलिटी पता कर सकते हैं कि ये जो आ रहा है ये सच है भी या नहीं। इसी तरीके से कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल में आपके पास आते हैं और कहते हैं, बताते नहीं है बट आप महसूस कर जाते हैं कुछ गड़बड़ हुई है। बिकॉज आई रिमेंबर, मैं साइबर सिक्योरिटी की वर्कशॉप लेने गई थी, एक बिटिया मेरे पास आके कहने लगी आफ्टर द एंटायर वर्कशॉप, डिजिटल फुटप्रिंट बेटा, कुछ डिलीट नहीं होता दुनिया में, सब कुछ वहीं पे पड़ा रहता है, किसी ने फॉरवर्ड कर दिया तो भी चलेगा, किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। वो मेरे पास लास्ट में आके कहती, मैम अगर हमने किसी से अपनी कोई फोटो शेयर की है और हमने उसको सच में मैम सब डिलीट कर दिया था उसी समय मैम 5 मिनट्स में, तो क्या वो वहां रहेगी या चली जाएगी? अब मानेंगे नहीं, मैं अंदर से काम गई थी, छोटी सी 7th स्टैंडर्ड की लड़की थी। तो मैंने कहा बेटा वो, पहले तो सोचा पेरेंट बोलूं, पर पेरेंट तो मुझे पता था नहीं बोल सकते, बस पेरेंट नहीं बोल सकते क्योंकि मुझे पता है बच्चे आजकल पेरेंट से डरते हैं। बेटा मैम से बताओ, वो चली गई मुझे छोड़ के तुरंत। तो उसकी टीचर आई, टीचर ने मुझसे पूछा कि मुझे भी लग रहा है शी इज ऑफ बहुत दिनों से, मतलब प्लीज टेक केयर, पता नहीं क्या हुआ, क्या बात हुई, वी डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कैसे हुआ, बट देन देयर इज अ साइट कॉल्ड स्टॉप CII, ठीक है, आई होप मैं सही बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा कि कोई भी ऐसी इमेजेस, आपकी कोई भी इमेज जो आप नहीं चाहते हो कि कोई आगे बढ़ाए या कोई इस तरह की, वो आप उधर जाके रिपोर्ट कर दे, वो कोई आपकी इमेज को एक्सेस नहीं कर सकता, उसको तुरंत सोशल मीडिया से हटा दिया जाता है। स्टॉप CII, चेक कर लीजिए, आई गेस मैं भी अभी चेक करके आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं, टूल्स बने हुए हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं ढूंढनी है, हमें प्रॉब्लम्स तो पता है, हमें उनका सोल्यूशन ढूंढना है, किसको हम कैसे सॉल्व करें, और इसी सिचुएशन में रहते हुए सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे अपने आप को सेफ रखें, राइट। सो वी नीड टू सेफगार्ड आवर डिवाइसेस, शेयर विद केयर, डोंट फॉल फॉर फेक। कुछ भी आ रहा है, एक तो व्हाट्सएप में कुछ आता है, दैट इज वेरी डेंजरस, मतलब बिल नहीं दिया तो व्हाट्सएप क्यों कर रहे हो भाई, SMS करो, ईमेल करो, क्या हो रहा है, व्हाट्सएप में आ रहा है, व्हाट्सएप में लिंक आ रहा है। कितनी बार आपके अकाउंट से इतने पैसे कट गए, ये मैसेज व्हाट्सएप में आता है। आपके अकाउंट में आपने कोई ऐसी ऐप की, भाई आप ऐसे डालोगे तो 100 रुपए मिलेंगे, तो व्हाट्सएप में आ रहा है। ट्राई टू बी लिटिल, थोड़ा सा ये फिशी है ये सब चीजें, राइट। So that is what it's all about. We need to safeguard our secrets, and when in doubt, we have to talk it out. जैसे सर बात करते हैं बढ़िया सबसे, so we need to just talk it out, right? So with this, I end my presentation. IT Act जरूर आप इसको ध्यान रखें and make sure कि आपके स्कूल में या जहाँ पे भी आप रहते हैं फिर उसका print out. Thank you so much. Stay safe and healthy. I hope you got some inputs on this session. Yes. Thank you so much, Chetna ma'am. And NCRT is conducting every first and second week regular 5 hours training in cyber safety. So first week is in English version, same content. In the second week it will be conducted in Hindi version.
वो 5 days ऑनलाइन में चलता है, बट ऑनलाइन आप अटेंड करने के लिए जरूरी नहीं है. Once it is 5 days is over, it is released as a nano course on दीक्षा. So आप दीक्षा में कभी भी टाइम है, अभी ये पूरा ईयर का कोर्स कितना भी रिलीज हो रहा है, मार्च तक ओपन है. सो मार्च तक आप कभी भी आपका कौन सा एरिया में आपका नॉलेज चाहिए वो कोर्स ज्वाइन करके आप जरूरी कंप्लीट करना है. दूसरा एफर्ट्स है, every year SRG training is conducted on cyber safety and security. सब स्टेट में लास्ट 4 ईयर में 20% 80 पीपल का ट्रेनिंग दिया. अभी भी 600 people attended 2 phases of training, but hardly 221 people are getting certificate. Others पूरा simply deputation आ गया. सेशंस कुछ प्रॉपरली 50% भी अटेंडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलते. बट एटलीस्ट एवरी ईयर आपका स्टेट में कुछ ना कुछ पीपल ट्रेन है, उनको आपका स्टेट में ट्रेनिंग के लिए यूज कर दीजिए एज ए रिसोर्स पर्सन. मेनी पीपल आर कमिंग विदाउट अगेन द सेम प्रॉब्लम. मास्टर ट्रेनर्स बोलते हैं उनको आईसीटी लिटरेसी कंप्यूटर स्विच ऑन करने के लिए पता नहीं, उनको साइबर सेफ्टी का ट्रेनिंग नहीं दे सकते. एंड दिस ईयर बाय एवरी year in February, October month has to be celebrated by all the diets and SCRTs. It's an international safer internet month. So every year आप actually कुछ ना कुछ प्रोग्राम अक्टूबर में प्लान कर दीजिए आपका लेवल में. मे भी सिंपल चीज है सबको प्लेज लेने की. आपका डाइट लेवल में कुछ अवेयरनेस टॉक रखो, प्लेज ले लो. एवरी स्टेट एज अ साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक ग्रुप है सब साइबर डिपार्टमेंट से एजुकेशन देने के लिए. सो आपका कुछ भी रिसोर्स पर्सन पता नहीं है, आपका साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से कॉल करो, एटलीस्ट जरूरी वो सपोर्ट करते हैं. आपका रिसोर्स पर्सन का कभी भी साइबर सेफ्टी का चाहिए, आप स्टेट का थ्रू हमको पूछ सकते हैं, आपका कुछ भी पूछ सकते हैं. सो वी इवन विल राइट फ्रॉम हियर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टली टू. आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज इनपुट चाहिए, we will talk to Ministry of IT, and Ministry of IT has a department called ISCA CDAC. वो 5-7 प्लेस में है इंडिया से, उधर से आपका रिसोर्स पर्सन प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड चीज आपका लीगल एरिया में अभी आईटी एक्ट का ऊपर बात करना है, और आपका डेटा का ऊपर सब स्टेट में कुछ ना कुछ पोर्टल है, वेबसाइट है, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन कैसा करना है इनका ऊपर बात करना. और साइबर क्राइम हो गया, स्कूल में कुछ सिस्टम लॉस्ट है, और कुछ ना कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, इनका एरिया में चाहिए. हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक सेपरेट डिपार्टमेंट है I4C. ओके, वो I4C टेक्स केयर ऑफ ऑल द साइबर क्राइम केसेस ऑफ द होल कंट्री. सो आपका साइबर क्राइम का कुछ भी हुआ, उनका वेबसाइट में ही हम सबमिट करना चाहिए. So they allot, they have every state they have the cyber crime department. आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है, सब डिस्ट्रिक्ट में भी एक सेंटर है ऑलरेडी. सो आपका डिस्ट्रिक्ट में कभी भी रिसोर्स पर्सन चाहिए, उधर से वो अलाउ कर देंगे. सो आपका कुछ रिसोर्स सपोर्ट चाहिए, कभी भी आप CIT JD के लिए स्टेट का थ्रू लिख सकते हैं, इवन डाइट से ही लिख सकते हैं. जरूरी नहीं आप डाइट का ट्रेनिंग का इधर इतना दूर आना है, डाइट आप प्रिंसिपल का थ्रू सीधा JD से लिख सकते हैं. हमको ये ऐसा रिसोर्स सपोर्ट चाहिए. ओके, सेकेंड नेक्स्ट चीज है, एवरी February second Wednesday is called as a safer internet day. Okay, second Wednesday of February. So coming February 10th is second Wednesday. So sorry, second Tuesday or Wednesday? February 10th. It is Tuesday or Wednesday. I missed out. Wednesday. So February 10th this year we are celebrating that particular Internet Safer Day. So that's called as Internet Safer Day, and universally every year एक theme announce करते हैं. वो थीम का ऊपर हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम हमारा ऊपर करना चाहिए. आप एक्चुअली इंटरनेशनल आप सिंपली टाइप कर दीजिए सेफर इंटरनेट डे. दिस ईयर कौन सा टॉपिक में है, वो टॉपिक का रिसोर्स भी इशू करते हैं. सो आप कुछ ड्राइंग करना है और कुछ पजल करना है, उनका टॉपिक में आप लेके कर सकते हैं. दिस ईयर CIT वी हैव प्रिपेयर्ड डेली टिप, मंथली टिप एंड वीकली टिप ऑल्सो. ठीक है, गीता, can you just tell Praveen here to bring the set of cyber safety one set to show them? Okay.
So what we are trying to do is we are going to send to all the SCRTs at least 10 sets of this brochure hard copy. Sorry, this posters hard copy, and we are going to give all the soft copies also with the source file with you to possible to edit. So अभी हमारा नीचे हमारा NCERT का लोगो होगा. आप ये लेके आप मॉडिफाई करके आपका एससीईआरटी का लोगो डाल के भी आप आपका स्टेट सब डिस्ट्रिक्ट का इश्यू कर सकते हैं. डायरेक्ट लेवल में आप कुछ बजट है करके आपका स्कूल्स का इश्यू कर सकते हैं. एटलीस्ट डिजिटल इश्यू कर फर्स्ट. ठीक है, हम इधर से एससीईआरटी का भेज रहे बट एससीईआरटी से स्कूल का नहीं जा रहे समथिंग. सो हम आप सबको सपोर्ट चाहिए, इनका रिसोर्सेज. आप आपका सोशल मीडिया से भी 52 वीक्स का करा था, वीकली वंस आप एक पोस्टर लेके ना आप आपका पोस्टर डाल दीजिए. सो अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है. इट्स नॉट दैट लाइक हम इधर से ज्यादा बात कर रहे हैं सो हमको कुछ नहीं होगा. I'm coordinating cyber safety here for past 6 years, but every year I get struggle. एक ईयर मेरा अकाउंट है हो गया, नेक्स्ट ईयर मैं 4 घंटे डिजिटल अरेस्ट में था. सो इतना स्टोरी सुनने के बाद, इतना नॉलेज होने के बाद अल्टीमेटली प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए. At that moment वो नॉलेज नहीं है, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है. आई वुड हैव लॉस्ट ऑल माय मनी बिकॉज दैट वाज जस्ट नेक्स्ट डे ऑफ माय सैलरी. उनको पता है हैकर का द एवरी सिंगल डिटेल ऑफ यू. एट दैट टाइम आई अप्लाइड फॉर एसोसिएट प्रोफेसर. वो हैक करने के टाइम मेरा वो डिजिटल अरेस्ट में मेरा बोल रहे यू आर अंडर नाउ विक्टिम, यू आर वेटिंग फॉर योर एसोसिएट प्रोफेसर इंटरव्यू, आपका करियर खराब. हमको डर होता है. Right? So there is like this incident I'll share in some other session, but the reality is no one is out of this. It's a very very crucial area. अभी हम education में जरूरी लेना है and जरूरी कुछ ना कुछ sessions करना है. सब states में please efforts ले लीजिए. Support करने के लिए ज़्यादा organizations हैं. There are n number of NGOs who's ready to come and support the state in this free of cost. They don't even want money. They want space to do their work. So आप कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन से पार्टनर कर दीजिए. साइबर पीस फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा एनसीईआरटी का साथ कुछ पार्टनर्स हैं. वो साइबर पीस फाउंडेशन इज अ एनजीओ ओनली विद सिविल सर्वेंट्स, लाइक पूरा मेजर वो पूरा आर्मी नेवी पीपल है ना, उनसे बना के रखा है. नॉन प्रॉफिटेबल है. वो यूजुअली हमारा एनसीईआरटी सेशन का मनी भी नहीं लेते हैं सेशन देने के लिए रिसोर्स पर्सन, बिकॉज हम पार्टनरशिप बना दिए. ऐसा आपका स्टेट में आइडेंटिफाई करो, आपका स्टेट में काम करने के लिए, आपका लैंग्वेज में काम करने के लिए कौन है. दिस एरिया प्लीज ट्राई टू मेक सम प्रपोजल फॉर अ एक्टिव कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन साइबर सेफ्टी. ठीक है, हम अभी चाय के लिए जाना है. So you will come back after 15 minutes. It's in my watch, it's 11:10. So we will be back by 11:25. Okay.